একটু খাটলে হয়তো বেরিয়ে গেল, কিন্তু যার বেস স্ট্রং নেই সে কি করবে? তাকে স্ট্রং করতে হবে, কিছু করার নেই না। মানে এটা এটা ভাববার কোনো কারণ না। বিভিন্ন স্টুডেন্ট, তোর এখানে তো 7-8 জন আছিস, 8 জনেরই যে ছোটবেলা থেকে পড়াশোনার বেস ইকুয়াল এটা তো বলা যায় না, না? তাহলে যদি কারোর কোনো কিছুতে উইকনেস থাকে তাহলে তাকে সেটা রেকটিফাই করতে হবে। ঠিক আছে? মানে কেউ হয়তো ফেল করলো, তার মানে তো এই নয় কি সে পড়াশোনাটা বুঝছে না বা পাচ্ছে না। হয়তো অনেকেই হতে পারে, কেউ ফেল করে যেতেও পারে। ঠিক আছে? আমি ব্যাপারটাকে এইভাবে নিই না। মানে আমার কাছে পড়লেই পাস করতে হবে এরম ব্যাপার না। সব স্টুডেন্টের ক্যালিবার এ ডিপেন্ড করে। ঠিক আছে? আমরা তো জাস্ট অ্যাজ এ টিচার একটা কাজ করি, একটা চেষ্টা করি। কিন্তু স্টুডেন্টের নিজের ক্যালিবারটা খুব ইম্পোর্টেন্ট। কি কারোর যদি কোনো জায়গাতে কোনো উইকনেস থাকে তাহলে তাকে সেটা ঠিক করতেই হবে। ঠিক আছে? এবারে ধর সে কোনো স্টুডেন্ট ধর ফেল করে গেল। তার মানে এইটা নয় কি তার দোষ বা আ একে ওকে দোষ দেওয়া বা টিচারকে খুব মানে বাড়াবাড়ি হলে টিচারকে দোষ দিয়ে দেওয়া। সেগুলো অনেকে করে, সেটা আলাদা কথা। কিন্তু মেইন জায়গাটা ধরতে হবে কি হয় আমার ইন্টারেস্ট ক্রিয়েট হয়নি। নাহলে আমি জিনিসটাতে কোনো না কোনোভাবে ইন্টারেস্টেড হইনি বা আমার কোনো উইকনেস আছে যেটা ছোট থেকে আমি আমার উইকনেস গুলোতে যে প্রবলেম করেছি সেগুলো ঠিক করিনি। তখনই দেখি এই প্রবলেম গুলো হয়। বাকি মেইন ব্যাপারটা হচ্ছে ইন্টারেস্ট ক্রিয়েশন ফার্স্ট, সেকেন্ড থিং উইকনেস গুলোকে রেকটিফাই করে নেওয়া। আর থার্ড থিং যেটার জন্য এসছিস তোরা মার্কেটকে জানার জন্য, বোঝার জন্য, হয়ে যাবে। না খুব ভালো হয়েছে। আমার খুব ভালো লাগলো। খুবই ভালো লাগলো। ব্যাপার হচ্ছে ওরা প্রশ্নগুলো এমন দিয়েছে না, মানে কারো যদি ইংলিশটা একটু উইক থাকে, মানে যদি কারো প্রশ্ন বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে সে হুম, অ্যান্সার করতে পারবে না। আর আমারও প্রবলেমটা হচ্ছিল এরকম, যেগুলো বুঝতে পারছি না, মানে ওরা হয়তো আমার জানা উত্তর, হুম। কিন্তু এমন যে জিনিসটা ক্রিটিক্যাল ভাবে করেছে আমি দেখি ভাবছি কি না কি হয়ে গেছে, এটা আমার দ্বারা হবে না, মানে এরকম ওরকম আমি ওরকম ছেড়ে দিচ্ছিলাম ওইগুলো। হ্যাঁ, ইংলিশটাতে একটু স্ট্রং হতেই হবে। ইংলিশটা ওরা একটু স্ট্রং করতে হবে। মানে আপনাকে মানে সহজ ভাবে তো উত্তর করতে দেবে না, আপনাকে চিন্তা করতে দিচ্ছে যে হুম, কি নিশ্চয়ই। থেকে বার করতে হবে। না, না, ক্রিটিক্যাল থিংকিং থাকে। মিথ্যে কথা বলে লাভ নেই। ইক্যুইটি ডেরিভেটিভ মার্কেটে আর যত দিন যাবে ইক্যুইটি ডেরিভেটিভ এর এক্সাম আরো বেশি মানে আ টাফনেস রাখবে। কারণ মার্কেটে দেখতেই পাচ্ছিস কিরকম প্রবলেম ক্রিয়েট হচ্ছে। হ্যাঁ না? তো এবারে যারা মার্কেটে আসবে, এই যে যত ধরনের fraudulent activity হচ্ছে বা যত ধরনের মার্কেট রিলেটেড ইস্যুস হচ্ছে, এত লোক আসছে কিন্তু তারা কনফিডেন্স এ কাজ করতে পারছে না, টাকা কামাতে পারছে না। তো অবভিয়াসলি মার্কেট চাইবেই না কি মার্কেটে কিছু ভালো knowledgeable লোক আসুক। ঠিক আছে? এবারে NISM ও কিন্তু CF এর মতো একটা নিজের জায়গা বানাতে পারে। পুরো ব্যাপারটাই হচ্ছে এখন গভর্নমেন্ট ব্যাপারটাকে কিভাবে দেখছে। পুরো ব্যাপারটাই এখানে। মানে গ্লোবাল কোর্স হলেই ভালো আর ইন্ডিয়ান কোর্স হলে একটা মডারেট, এই জিনিসটা থেকে বেরোতে হবে। যদিও এই লাইসেন্সটা মাস্ট, কিন্তু তবুও আবার নলেজের জন্য সবাই সিএফএ চেঁচায়। হ্যাঁ? কিন্তু NISM করেও কিন্তু ইকুয়াল নলেজ গ্যাদার করা যেতে পারে। কারণ গভর্নমেন্ট চাইলেই পারে সেই জিনিসটা তৈরি করতে। আস্তে, আস্তে হবে। যখন লাইসেন্সটা দিয়েছে আস্তে, আস্তে দেখবি ফান্ডাটাও দিয়ে দেবে। মানে ওই ভ্যালুয়েশনটা ওয়ার্লড ওয়াইড পেয়ে যাবে। আসলে ওই ব্যাপারটা প্রবলেম ওটা না। ওই এমসিকিউ মুখস্থ করে যায় বলে মার্কেটে ভ্যালুয়েশনটা পড়ে যায়। নাহলে এদেরই সেলারি ভ্যালুয়েশনটা বেড়ে যাবে। কিছু না একটু পড়াশোনা করুক, আরেকটু টাফনেস নিয়ে আসুক। আরেকটু টাফনেস। আমি তো বলব আরেকটু টাফ করুক। আমার তো এটাই ইচ্ছা। কিন্তু যত পড়তে হবে অত ভালো না। তবে মার্কেট স্ট্রং হবে। হয়তো তোরা ভাবছিস কি স্যার পাস করে যাই ভালো। ব্যাপারটা পাস করা নয়, ব্যাপারটা ভ্যালুয়েশন। নাহলে তোরা কামাবি কি? সিম্পল কথা। একটা স্টুডেন্ট তো পড়াশোনাটা করছে রোজগার করার জন্য। তো রোজগারটা তো ভ্যালুয়েশন এর উপর থাকে। পাস করে তো দেখ না 11-12 কে ইজি করে দিয়ে গভর্নমেন্ট কি করেছে? পলিটিক্স করে দিয়েছে। সবাই পাস। আর সবাই পাস করে করছেটা কি? এদিকে দেখা যাচ্ছে সবাই গ্র্যাজুয়েট, সবাই 12 পাস করেছে, সবাই সায়েন্স পাস করেছে, আর্টস পাস করেছে, কমার্স পাস করেছে, ভর্তি। মাস্টার ডিগ্রি ভর্তি। তো কি লাভটা কি আছে? হ্যাঁ? সবকিছুতে এরকম মানে হ্যাঁ? কম্পিটিশনটা হাই করে দিয়েছে, মানে আগে একটা হ্যাঁ, গ্র্যাজুয়েট চাকরি পেত, এখন সবাই হ্যাঁ। দাবি করছে গ্র্যাজুয়েট পাস ছেলে সবাই আমাকে চাকরি। সবাই দাবি করছে। তাহলে এটা তো chaos ক্রিয়েট করছে। জিনিসগুলোকে আগের মতো করে দেওয়া উচিত। এত ইজিলি সবকিছুতে পাস হয়ে যাওয়া। এতে কি হচ্ছে না? স্কিল ডেভেলপমেন্ট টাও হচ্ছে না। যে সবাই ভাবছে আমি মানে 90% পেয়ে যাচ্ছি মানে আমি অনেক জানি। মানে সবাই তো পার্সেন্টেজ দিয়ে বিচার করে না। হ্যাঁ? আমি 90% ও 80% সবাই অনেক জানে। বাস্তবে যে কিছুই জানে না কেউ প্রপারলি, মানে এটা তো খুব খারাপ হচ্ছে না? মানুষকে ভুল দিকে চালনা করছে। এটা খুব খারাপ। মানে দেখ না, চন্দ্রযান-3 লঞ্চ করলো। হ্যাঁ না? একদম সেফ ল্যান্ডিং করলো। চন্দ্রযান-3 তে যে সমস্ত ইঞ্জিনিয়াররা আগেও কাজ করেছে, বেশিরভাগ ইঞ্জিনিয়ার কোথাকার? সাউথ ইন্ডিয়ান। তাই তো? বেশিরভাগ ইঞ্জিনিয়ার সাউথ ইন্ডিয়ান তো। এমনকি মেইন হ্যাঁ যিনি ওই
হয় দেখবি তামিলিয়ান হবে, নাহলে কেরালিয়ান হবে। কেন? ওরা কেন, মানে ম্যাক্সিমামটা কেন? হয়তো একটা দুটো বাঙালি সায়েন্টিস্ট কখনো কখনো দেখা যায়, হ্যাঁ, কিন্তু একটা দুটোতে হবে না, না। কালকে দাদা দেখছিলাম, বুঝলে, হ্যাঁ, বল। কালকে কালকে দেখছিলাম এই চন্দ্রযান 3-তে হুম, যাদবপুর ইউনিভার্সিটির একটা প্রফেসর রয়েছে। পুরো হুম। তোমার ওর যে টিমটা আছে, মানে ওর ইউনিভার্সিটির যে টিমটা আছে, সেই টিমটা পুরো ওয়ার্ক করেছে, মানে পুরো তোমার সফট ভাবে যে ল্যান্ডিংটা করেছে, এটা অনলি ফর যাদবপুর ইউনিভার্সিটির জন্য। না, আর না, আমি কি তাছাড়াও বললাম? যাদবপুর ইউনিভার্সিটি বলছি, মানে তুমি বললে হুম। বলে, যাদবপুর ইউনিভার্সিটির 6 থেকে 7খানা সায়েন্টিস্ট পাস আউট চন্দ্রযান 3-তে রয়েছে, তার মধ্যে সবকটাই বাঙালি। না, না, আমি কি বললাম, থাকবে বাঙালি, থাকবে না, এ কথা তো বলিনি আমি। আমি বলতে না, চাইছি মেন বাঙালির কথা মেন না, আমি বললাম মেন যে মাথাগুলো। যাদব আমি বুঝতে পেরেছি যাদবপুরের একটা অবদান আছে, না, না, সে তো থাকবেই। কিন্তু দেখবি মেন মাথাগুলো ম্যাক্সিমাম অন এন এভারেজ সাউথ থেকে বিলং করে। তুই দেখে নিস, মানে পুরো ইতিহাস খুলে দেখে নে, বেশিরভাগ, মানে রিসেন্ট ডেভেলপমেন্ট বলছি, আগের কথা বলছি না। এটাই সাউথ ইন্ডিয়ান যারা আছে তারাই করেছে মেনলি। মেনলি ওরাই তো লিড করেছে না, সেটাই বলছি আমি। কি মানে আমাদের এডুকেশন সিস্টেমটাকে খুব খারাপ করে দিচ্ছে। যাই হোক, একটা খুব ভালো অ্যাচিভমেন্ট করলো ইন্ডিয়া, যেটা রাশিয়াও করে দেখাতে পারেনি। এটা কিন্তু একটা বিশাল বড় পাওয়ারফুল, মানে একটা সংকেত। আচ্ছা, স্টক গুলো দেখেছিস কি হয়েছে চন্দ্রযান 3-র জন্য? আমি কালকে রাত্রে একটু হ্যাঁ, দেখছিলাম কালকে তো এসে। দিয়েছিলাম, তো কালকে তো আমি দিয়েছিস? দিয়েছিলাম, আমি দেখিনি। কিন্তু এল&টিটা নিয়ে না আমার এই প্রচন্ড একটু সংশয় রয়েছে আর কি, কাল বুঝলে তো। এমটারে আর একটা কেউ কিছু হ্যাঁ, বলছে, এমটা তো এমটার টেকনোলজি। বলছি আমি। হ্যাঁ, এমটা টেকনোলজি। হ্যাঁ এ তো কাল লাইফ টাইম বেস্ট আইপিও লিস্টিং, তো অল টাইম বেস্ট আইপিও লিস্টিং এর মধ্যে একটা এমটার টেকনোলজি। বিভৎস হাই আইপিও লিস্টিং হয়েছিল এমটার টেকনোলজি, আমার মনে আছে। কালকে হাই গ্রোথ দিয়েছে, কালকে পরশু, ওই চন্দ্রযানের জন্যই দিয়েছে। ভেলেরও ভালো স্টকে গ্রোথ হয়েছে, দেখেছিস? ভেলটা দেখছিলাম, মানে ভেল ভেল তো থাকবেই না, আজকে পড়েছে, তাই কালকে বোধহয় ওইটার জন্যই গ্রোথটা দিয়েছে রিসেন্টলি। প্রফিট বুক আচ্ছা, করেছে মানে। হ্যাঁ, প্রফিট বুক করেছে ভেল। আর একটা হচ্ছে তোর হালের কি অবস্থা? এটারও তো থাকার কথা, এটাও কালকে করেছে, মানে মোটামুটি এই তো এই তো করেছে, দিয়ে প্রফিট বুক করে নিয়েছে, তাই জন্য পড়েছে, দেখেছিস কি অবস্থা। আচ্ছা, চলো স্যার, স্টার্ট করা যাক আজকের ক্লাস। ওকে, আচ্ছা, সবাই আওয়াজ ক্লিয়ার তো সবাইকে? হ্যাঁ স্যার। রেকর্ডিং স্টার্টেড না? আমি আগেই করে দিয়েছি, ভুলে যাবো বলে। আচ্ছা, এগেন গুড মর্নিং টু অল অফ ইউ স্যার। তো চলো স্যার, स्टार्ट करा যাক। अच्छा देखो, तो फिर आज क्या पढ़ेंगे? सर, आर्बिट्रेज रिलेटेड एक डिस्कशन हो रहा था, तो मैंने सोचा, आर्बिट्रेज रिलेटेड स्ट्रेटेजी हो रहा था एक्चुअली, मैं बता रहा हूँ। लास्ट क्लास स्टॉक, मतलब ऑप्शन स्ट्रेटेजी में हम लोग जिस स्ट्रेटेजी के साथ डिस्कशंस करना स्टार्ट किए थे, दैट इज सिंथेटिक लॉन्ग एंड आर्बिट्रेज। नाउ सिंथेटिक लॉन्ग क्या है, ये तो हो चुका था, बट आर्बिट्रेज का डिस्कशन बाकी था। मैं आज आप लोगों को कोशिश करूंगा आर्बिट्रेज का कुछ रियल लाइफ सिचुएशंस बताने का, कि आर्बिट्रेज एक्चुअल में काम कैसे करता है। आर्बिट्रेज क्या है ये पता लग गया है। लास्ट क्लास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिश मार्केट एग्जांपल हुआ था, है ना? फिश फिश का आर्बिट्रेज याद है सबको? कि नंदन, অরিত, হ্যাঁ স্যার, একটা অরিতের একদম আওয়াজ পাই না। অরিত, বুঝতে পারছিস তো ক্লাস? হ্যাঁ স্যার অরিত বুঝতে পারছি। okay. অরিত চুপ চুপ থাকে, আমি ভাববে স্যার জিজ্ঞাসাই করেনি কিছু। অসুবিধা হলে বলবি। अच्छा देखो, হ্যাঁ স্যার। आर्बिट्रेजिंग वर्क्स इन इन्वेस्टिंग, ठीक है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बात कर लूंगा आज आपके साथ। ऐसे नॉट जस्ट इन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग, बट ऑल्सो इन करेंसी, कमोडिटी, हर चीज में काम करता है, स्पेशली करेंसी में। करेंसी में भी आर्बिट्रेज का सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो आर्बिट्रेज के बारे में मैं आज बात करूंगा, और पहले आर्बिट्रेज बताऊंगा। आर्बिट्रेज का आइडिया हो गया सर, बट अब इन्वेस्टिंग रिलेटेड बात करना है। मैंने कैसे नॉर्मल लोग फिश मार्केट में आर्बिट्रेज करते हैं, है ना, लोकल मार्केट से लेके दीघा मार्केट से कोलकाता मार्केट में किस तरह से डिफरेंस में कमाते हैं। वी ऑल नो दिस, बेसिकली एक ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है ना, और कुछ भी नहीं। स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट बिजनेस,
वहां खरीदो जहां सस्ता है, वहां बेचो जहां महंगा है। दैट्स अ वेरी सिंपल, और कुछ भी नहीं है, ये बिजनेस का फंडा है। जिसको बिजनेस समझ में नहीं आएगा वो थोड़ा सा मुश्किल में पड़ेगा। और ऐसे नहीं, ये एक बिजनेस का बात नहीं है, हजारों बिजनेस है इसके अंदर, लाखों बिजनेस है इसके अंदर। सो इफ यू अंडरस्टैंड द बिजनेस बिहाइंड स्टॉक मार्केट, देन यू विल अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में स्टॉक मार्केट कब क्या करेगा। जिसका बिजनेस रिलेटेड एनालिसिस गलत हो जाएगा ना, वो लॉस खा जाएगा। और जब बिजनेस रिलेटेड एनालिसिस सही हो जाएगा, वो प्रॉफिट कर जाएगा। हाँ, बिजनेस को एनालिसिस करने के लिए आपके पास दो चार टेक्निक है। आप फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करो, आप टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करो, आप अपना क्वांटिटेटिव एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करो, इसमें आपको हेल्प होगा। बट एक बात बार बार मैं बोलूंगा कि सर आपको बिजनेस आइडेंटिफाई करना है, माने लॉन्ग टर्म बिजनेस एज वेल एज शॉर्ट टर्म बिजनेस। कल मैं थोड़ा सा, क्योंकि मेरा मेटरनल मतलब मामा बाड़ी का जो मतलब मामा घर बोलते हैं ना, नानी हाल, तो वो हावड़ा के अंदर है थोड़ा, हावड़ा के विलेज एरिया में है। धुलागढ़ आई थिंक आप सब जानते हो, धुलागढ़ से थोड़ा अंदर जाना पड़ता है। तो मैं जब रात को आ रहा था, तो कल बस में आ रहे थे सर रात को, तो मुझे रास्ते में ना कुछ बड़ा बड़ा होलसेल मार्केट दिखा, बहुत बड़ा बड़ा। मैंने इस टाइप ऑफ नाम भी दिया है, इंटरनेशनल हाट बोल के। तो मैं वहां देख रहा था कि काफी सस्ता में एक जगह है ओमपुर हाटी बोल के, मैं नाम भी बता रहा हूँ आपको, आप लोग शायद जानते हो, नेशनल हाईवे के ऊपर पड़ता है। तो ओमपुर हाटी के ऊपर मैं देख रहा था कि NH-16। हाँ, NH-6 बॉम्बे रोड, जो रास्ता तुम लोग कोलाघाट जाते रे बाबा ठीक है, हाईवे, ठीक है। না तो কোলাঘাট না, ওটা ডাইরেক্ট তোমার রানীহাটির সাথে কানেক্ট করে দেয়। हाँ, एक्चुअली वही रानी हाटी रे बाबा, कोलाघाट तो बहुत दूर हो गया। मैं NH-6 मतलब वही बॉम्बे रोड का ही बात कर रहा हूँ, जो एकदम सीधा खड़गपुर तरफ जा रहा है, उसी रास्ते से तुम लोग दीघा भी जाते हो, ठीक है। सारा रास्ता वही है, बॉम्बे रोड बोलते हैं इसको, या मुंबई रोड जो बोलो। तो मेन बात सुन यार, तुम लोग ना माथा खराब करते। वहां पर कुछ होलसेल कपड़ा दुकान ओपन हुआ है, तो मैं आते ही देख रहा था कि सस्ता में प्रोडक्ट दे रहा है सर। ये जैसे लड़का लोग शॉर्ट्स पहनते हैं ना, हाफ पैंट, ठीक है, बारमूडा जिसको हम लोग बोलते हैं, बारमूडा बेच रहा है सर 50 रुपीज पर बारमूडा। इतना भी खराब नहीं है, होलसेल दाम है, आपको बल्क में लेना पड़ेगा, 50 रुपीज ओनली। अब सोचो कि मार्केट में वही कम से कम रिटेल में 120, 130, 150 में बिक जाएगा। मैं देख रहा था सर, तो बहुत क्लोजली जा रहा था बस। ये मैक्सी होता है ना, जो घर में माँ बहनें पहनते हैं ना, नाइटी भी बोलते हैं उसको, तो नाइटी वगैरह भी देख रहा था, उसका भी मार्केट में 100 रुपीज, 70 रुपीज, 60 रुपीज, सीरियसली होलसेल दाम है। तो बेसिकली मैं वही चेक कर रहा था, ऐसे गुजरात में भी काफी सस्ता सस्ता मार्केट है, और हमारे वेस्ट बंगाल में भी है। तो जो लोग बिजनेस करता है, वो लोग क्या करते हैं, वो सस्ता मार्केट है। अंकुराटी में हाट जो बैठा है, अब उसको थोड़ा सा ना एकदम सब ग्लास बिल्डिंग्स है, फुल AC मार्केट बना दिया, ठीक है। क्योंकि अभी हावड़ा का ना वो एरिया बहुत अच्छा बिजनेस हब बन गया है, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है ट्रांसपोर्टिंग के लिए, पूरा बंगाल को इजीली कनेक्ट कर सकता है, बाय रोड बाय रेल। दैट्स वाई, मतलब ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक वाइज बहुत बेहतर बात। तो इसलिए क्या है ना, बहुत इजीली लोग पहुंच पाते हैं, परचेस करेंगे, अपने लोकल एरिया में जाके बेचेगा। दैट इज ऑल्सो आर्बिट्रेज, बट यू जस्ट नीड टू फाइंड द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। एग्जैक्टली जैसे मैं आपको फिश मार्केट बोलो या फिर अंकुर हाटी में कपड़ा का मार्केट, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको। चलो, इतना फेमस हो गया है सब मार्केट। ये देखो, मैं लिखा बस अंकुर हाटी होलसेल मार्केट, मेरे सामने दिख रहा है। और इसमें मैं इमेज में भी क्लिक करूंगा ना, ये देखो दिखेगा आपको क्या क्या दिखा रहा है, देखो। आप लोग इसके ऊपर ब्लॉग भी मिल जाएगा। ये देखो, लेडीज ड्रेसेस होलसेल में बिक रहा है, सीरियसली सस्ता है। अब जिनको कपड़ा का बिजनेस करने का इच्छा है ना, वो ट्राई कर सकता है, ठीक है। मैं देख रहा था, दूर से ही देख रहा था, दाम पूरा मुझे नजर आ रहा था। अब क्वालिटी चेक तो सामने जाके ही चेक हो सकता है, बट फिर भी होलसेल मार्केट है। तो अंकुराटी से लोग क्या कर रहे हैं ना, जो लोग कपड़ा मार्केट में आना चाहता है, रिटेल में बेचना चाहता है, या फिर कोई कोई लोग क्या कर रहा है, जैसे मानो आप लोग एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है, नाम सुने हो, मेशो बोल गए। हाँ सर। হ্যাঁ দাদা। हाँ, হ্যাঁ হ্যাঁ, বিশাল বড় কোম্পানি হয়ে গেছে। मीशो 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 इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया सर, गूगल ने भी इसमें इन्वेस्ट किया, आप समझ सकते हो। ये जो मीशो ऐप है ना, गूगल इसमें इन्वेस्ट किया है, अच्छा खासा $1 बिलियन इन्वेस्ट किया है। मीशो का बिजनेस फॉर्मेट यही है, ये क्वालिटी में इतना ध्यान नहीं देता। मतलब अमेजन फ्लिपकार्ट में थोड़ा क्वालिटी प्रोडक्ट बिकता है, मीशो में इतना क्वालिटी नहीं है, मिक्स्ड अप टाइप है। कभी किस्मत अच्छा रहे तो क्वालिटी में मिल जाए, ये भी ना एक्चुअली वही काम किया है।
अगर मैं कपड़ा का बात करूं, इसके ऊपर मैं देखता हूँ यूट्यूब वगैरह में हॉल वगैरह भी करते हैं कुछ लड़के की, मीशो में ये वाला मिल रहा है वो वाला मिल रहा है, बट मैं आपको बिजनेस बता रहा हूँ। हॉल अपना यूट्यूब चैनल कैसे चलाना है वो सबको अपना अपना पता है, जिसका जो भी प्रोडक्ट है। बट पॉइंट इज दैट कि ये लोग क्या कर रहा है, बहुत ही मतलब सॉफ्ट रेट में, बहुत ही सॉफ्ट रेट में मार्केट से उठा रहा है। कहाँ से उठा रहा है, कहाँ से उठा रहा है? ये अंकुराटी जैसे होलसेल मार्केट, हाट का बाजार, तो अंकुराटी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड हो गया है। तो ये सस्ता मार्केट है, अब तुम सस्ता मार्केट से महंगा मार्केट में जाके बेचो जहां तुमको मिलेगा। सो बेसिकली कहीं ना कहीं ये नॉर्मल बिजनेस हुआ ना, बट यही नॉर्मल बिजनेस एक्चुअली आर्बिट्रेज का ही एक टेक्निक है। बस यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ। जैसे ये सेम कॉन्सेप्ट हम लोग आर्बिट्रेज में भी देखें। अब आपको मैं फिश मार्केट, कपड़ा मार्केट आप सब समझ गए, मैं आपको लेके चलता हूँ ऑप्शन आर्बिट्रेज में, ठीक है? बट बिफोर गोइंग टू ऑप्शन आर्बिट्रेज, मैं आपको आर्बिट्रेज के बारे में कुछ बात करूँ। चलो, आर्बिट्रेजिंग वर्क्स इन इन्वेस्टिंग विद एग्जांपल्स। तो चलो देखते हैं कि आर्बिट्रेज क्या है और इसके बारे में इन्वेस्टिंग वर्ल्ड कैसे कैसे काम कर सकता है। थोड़ा इजी भी है और थोड़ा ट्रिकी भी है। सुनना बात को मेरा, थोड़ा इजी है थोड़ा ट्रिकी है। सर ये कैसा बात है? Arbitrage is the simultaneous purchase and sale of the same or similar asset in different market in order to profit from teeny differences in the asset listed price. Arbitrage is the simultaneous purchase and sale of the same or similar asset in different markets in order to profit from teeny differences in the asset listed price. It exploits short-lived variations. Basically, एक short-lived variations रहते हैं in the price of identical or similar financial instruments में in different markets or in different forms. मैं इसको बहुत सिंपलीफाइड तरीके से भी आपके सामने रख सकता हूँ। आप जब कोई स्टॉक परचेस करते हो, से फॉर एग्जांपल यहाँ पर येस बैंक को ही अगर आप बाई करना चाहोगे, आप यहाँ पर देख सकते हो कैसे करना है आर्बिट्रेज। जैसे आर्बिट्रेज का सॉफ्टवेयर होते हैं, वहां पर बल्क में काम होता है सर, ठीक है? मैंने आप नॉर्मल में करके देख सकते हो, बट वहां पर ना बल्क में होते हैं, आर्बिट्रेजिंग सॉफ्टवेयर होते हैं ट्रेडिंग के लिए। आर्बिट्रेज ट्रेडिंग ही होता है जिसमें ना मोटा मोटी थोड़ा ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है, बिकॉज इसका जो मेन डिफरेंस है ना वो पैसे का है। ये देखो सर, लुक एट सर, लुक एट, ये देखो चेंज देख रहे हैं सर आप? बीएससी और एनएससी के बीच का डिफरेंस देखो आप। बीएससी में 16 टका 87 पैसा, एनएससी में 16 टका 90 पैसा। कितना डिफरेंस हो गया? 30 पैसा का। हेलो, দেখা যাচ্ছে? डिफरेंस दिख रहा है ना सर? हाँ, बस यही डिफरेंस में आर्बिट्रेज काम करता है। एक मार्केट में सस्ता, दूसरे मार्केट में थोड़ा सा महंगा। और ये जो होता है ये बेसिकली कैलकुलेशन टेक्निक वेरिएशंस है, ठीक है? और ये जो शॉर्ट लिव्ड वेरिएशंस है ना, आर्बिट्रेजर इसका फायदा उठाते हैं। बट इसको स्टॉक मार्केट में कितना अच्छा होता है, उससे भी बेहतर होता है सर करेंसी मार्केट में। स्टॉक मार्केट में भी होता है, ठीक है? आपको आपके सामने वेरी वेराइटीज ऑफ। हाँ बोलो सर। বলছি কি আরবিট্রেজকে কাজে লাগিয়ে আগে हम्म, প্রচুর মানে গেইন করেছে অনেকে, কিন্তু এখন টেকনিক্যালি অনেকটা ডেভেলপ করার জন্য ওই রেঞ্জের हाँ ডিফারেন্স, हाँ, बोल बोल बोल, मैं सुन रहा हूँ। মানে বিএসসি আর এনএসসির যে ডিফারেন্সটা সেটা हाँ এখন हाँ আর দেখা যায় না, কারণ টেকনিক্যালি অনেকটা ডেভেলপ করেছে, তো ওই জন্য এরর হ্যাঁ, গুলো ফাইন্ড আউট করে। কমে গেছে, এরর গুলো কমে গেছে। এক্স্যাক্টলি আমি ওটাই বলছি, এখন স্টকে অতটা দেখা যায় না, বাট কারেন্সি মার্কেটে এখনো এটার ইউজ খুব আছে, ঠিক আছে? তো এই জিনিসটা কি এখানে আরবিট্রেজ বলছে কি, একটা যে মার্কেটে সস্তা সেখানে বাই করো, যে মার্কেটে महंगा সেখানে হ্যালো, সেল করো। হ্যাঁ বল। কারেন্সি মার্কেটে যেটা বললাম, অনেকে ধরো তোমার ইয়েন বা ডলারে যদি ডাইরেক্ট না ট্রেড নিয়ে নেয়, আরবিট্রেজ করে হচ্ছে তোমার মানে যে ডলার ইন্ডেক্সের যে ফ্র্যাকশনটা থাকে না, মানে আইএনআর এর সাথে তোমার ডলারের যে ফ্র্যাকশনটা থাকে, হ্যাঁ ওটার উপরে ট্রেড নিয়ে নেয়, ওটার উপরে আরবিট্রেজ করে দেয়। এক্স্যাক্টলি ওটাই আমি ওটাই বলছি, আমি ওটাই ওটাই বোঝাচ্ছি। দেখেন একবার। So arbitrage is the simultaneous purchase and sale of the same or similar asset in a different market in order to profit from teeny differences in the asset listed price. Like BSE NSE में जैसे आपके सामने अभी अवेलेबल हुआ था, है ना? It exploits short-lived variations. तो ये variations basically technical difference in different exchange के कारण होता है, और similar financial instrument in different market or in different forms. Arbitrage exists as a result of market inefficiency. आर्बिट्रेज इसलिए होता है बिकॉज मार्केट में लिटिल बिट इनएफिशिएंसीज रहते हैं, बिकॉज डिफरेंट एक्सचेंज डिफरेंट तरीके से मेंटेन करता है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, और उसी डिफरेंस का या उसी इनएफिशिएंसीज का मार्केट फायदा उठाते हैं।
in both and it both exploit those inefficiencies and resolve them. तो बेसिकली आर्बिट्रेज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आर्बिट्रेज इज द साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल ऑफ एन एसेट इन डिफरेंट मार्केट टू एक्सप्लॉइट इट टीनी डिफरेंसेस. Arbitrage trades are made in stocks, commodities and currencies. Arbitrage take advantage of inevitable inefficiencies in the market. ठीक है, इसके ऊपर एक अलग से ही मार्केट चलता है सर. आर्बिट्रेज के ऊपर एक अलग ही मार्केट कॉन्सेप्ट चलता है. इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है और जो भी इनकम होगा वो रिस्क फ्री है. कंपेरेटिवली रिस्क फ्री है. इवन आर्बिट्रेज फंड भी डेवलप करते हैं म्यूचुअल फंड्स कंपनीज. सो आर्बिट्रेज का एक अलग ही मार्केट स्ट्रक्चर बना हुआ है. बट पहले जान लो बेसिक लेवल में आर्बिट्रेज कैसे काम करते हैं, करंट टाइम में क्या सिचुएशन है वो तो आपको वक्त बता देगा. So by exploiting market inefficiencies, however, the act of arbitraging brings market closer to efficiency. आर्बिट्रेज करने के बाद जो इनएफिशिएंसी मार्केट के अंदर रहते हैं, लाइक दोनों अलग मार्केट में, लाइक बीएसई में, एनएसई में, उसको धीरे धीरे एफिशिएंट बना देते हैं. अब अंडरस्टैंडिंग आर्बिट्रेज कैसे काम करता है. आर्बिट्रेज कैन बी यूज्ड व्हेनेवर एनी स्टॉक और कमोडिटी और करेंसी, जिस तीनों चीजों में डेरिवेटिव होता है, may be purchased in one market at a given price and simultaneously at a time, same time पे sold it another market at a higher price. The situation creates an opportunity for a risk-free profit for the trader. ये बात लास्ट दिन भी हुआ था. Arbitrage provides a mechanism to ensure that prices do not deviate substantially from fair value for a long period of time. एक बात ध्यान रखना पड़ता है कि जो मेन प्रोडक्ट प्राइस होता है, जो स्टॉक का प्राइस होता है या जो करेंसी का मार्केट रेट चल रहा है, ये फेयर वैल्यू से बहुत ज्यादा डेविएट ना हो जाए. आर्बिट्रेज प्रोवाइड्स करता है ये मैकेनिज्म टू इंश्योर दैट प्राइसेस डू नॉट डेविएट सब्सटेंशियली फ्रॉम फेयर वैल्यू फॉर लॉन्ग पीरियड. माने बहुत दिनों के लिए ये फेयर वैल्यू से बहुत दूर में आए, ये अच्छा नहीं है सर. विथ एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी इट हैज बिकम एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू प्रॉफिट फ्रॉम प्राइसिंग एरर इन द मार्केट. जो बात अभी विश्व बोल रहा था. हाँ विश्व, देख तेरा ही बात आ गया ना, क्योंकि अभी धीरे धीरे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुआ है तो मार्केट के बीच का जो गैप है ये काफी कम हो गया है. তাই তো? এটা এক্ষুনি বিশ্ব বলছিলিস তো নাকি রে? হ্যাঁ দাদা এটাই বলছি. तो पहले से ये थोड़ा सा कम हुआ है बिकॉज वो जो प्राइसिंग एरर है ना वो कम हो गया. बट इसी एरर का फायदा मार्केट उठाता है. Many traders have computerized trading system set to monitor fluctuations in similar financial instruments. Same financial instrument, मतलब सपोज कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक मानो जो इंडिया में भी है और अमेरिका में भी है, लाइक इन्फोसिस. ठीक है, इस तरह का एनी काइंड ऑफ जो एक ही स्टॉक है बट दोनों अलग अलग एक्सचेंज में मार्केट में अवेलेबल है. एनी इनएफिशिएंट प्राइसिंग सेटअप्स आर यूजुअली एक्टेड अपॉन क्विकली एंड द अपॉर्चुनिटी इज एलिमिनेटेड ऑफन इन अ मैटर ऑफ सेकंड. एक सिंपल आर्बिट्रेज एग्जांपल देखो. सिंपल है, आप इसको बीएससी एनएससी के एंगल से भी सोच सकते हो. मेरे यहाँ पर ये एग्जांपल्स मुझे कहाँ से मिल रहा है, ये आपका न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एंड लंदन स्टॉक एक्सचेंज का एग्जांपल है. ठीक है, तो थोड़ा डॉलर में दिया है, बात सेम है, सुन लो सर. एज ए स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्पल ऑफ आर्बिट्रेज कंसिडर द फॉलोइंग. द स्टॉक ऑफ कंपनी एक्स, कोई एक कंपनी है जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी ट्रेड कर रहा है और सेम स्टॉक लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी ट्रेड कर रहा है. न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में $20 चल रहा है और लंदन स्टॉक एक्सचेंज में $20.05 चल रहा है. ठीक है, ए ट्रेडर कैन बाय द स्टॉक एंड NYSE, मैंने न्यूयॉर्क में बाय करेगा बिकॉज वहां सस्ता है, एंड सेल करेगा लंदन पे. तो डिफरेंस कितना हुआ, 5 सेंट्स. ये डॉलर का जो, जैसे हम लोग यहाँ पर पैसा पैसे बात करते हैं ना, उस तरह का वो लोग सेंट में बात करते हैं, मिनिमम डिनोमिनेशंस को बताते हुए. तो 5 सेंट्स पर शेयर यहाँ पर ये लोग कमा रहे हैं. The trader can continue to exploit this arbitrage until the specializations on the NYSE, मैंने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जो स्पेशलिस्ट टेक्निकल मैंने टेक्निकल इन द सेंस टेक्नोलॉजिकल जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, ठीक है, जो इस चीज को मेंटेन कर रहे हैं, तो तब तक आप आर्बिट्रेज कर सकते हो. मतलब पॉइंट इज दैट आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी ट्रेडर के पास कब तक रह सकता है, जब तक उसके पास इन्वेंट्री अवेलेबल है. इन्वेंट्री माने हम लोग ट्रेड किस स्टॉक का करते हैं सर, हम लोग ट्रेड करते हैं आउटस्टैंडिंग शेयर्स का. ट्रेड करते हैं हम लोग आउटस्टैंडिंग शेयर्स का जो मार्केट में ट्रेडेबल है. अगर होल्डिंग में जो शेयर्स है वो थोड़ी ना ट्रेड हो सकता है. प्रोमोटर होल्डिंग या रिटेल होल्डिंग या FII DII होल्डिंग, उसमें थोड़ी ट्रेड होगा. जो मार्केट में अवेलेबल है ना, जो मार्केट में ओपन पोजिशंस में है उसी को लेके हम लोग ट्रेड करते हैं. तो आउटस्टैंडिंग शेयर्स जब तक स्टॉक में पड़ा रहेगा
उसका ट्रेडिंग होगा, उसका ट्रेडिंग होगा। तो वही बता रहे हैं कि until the specialist on the न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज रन आउट ऑफ इन्वेंटरी, जब तक उसका इन्वेंटरी खत्म ना हो जाता किसी पर्टिकुलर शेयर का या स्टॉक का, या फिर until the specialist on न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज or the London Stock Exchange adjust their prices to wipe out the opportunity, या फिर वो जो टेक्निकल गैप है सेंट्स का या पैसा का, वो गैप ठीक ना हो जाए। जब ठीक हो जाएगा, ज्यादा गैप और नहीं बचेगा, तब आपको आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी भी गायब हो जाएगा। आप ढूंढो, रिसर्च करो कि कहाँ आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी कितना दिख रहा है। टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेज में रिस्क होता है, इंक्लूड रिस्क, ठीक है, रिटेल, कन्वर्टेबल, नेगेटिव, स्टैटिस्टिकल एंड ट्रायंगुलर, ठीक है, अमंग अदर्स। बहुत तरह का अलग अलग आर्बिट्रेज होता है। कभी मौका मिलेगा ना तो ये सब में भी बात कर लेंगे सर, बट फिलहाल अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ बात करते हैं सर। ये तो सिंपल एक एक्सचेंज के अंदर का डिफरेंस मैं आपको बता रहा था। एक ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज के बारे में सुनो सर, ट्रिकियर है, कैन बी फाउंड इन फॉरेक्स और करेंसी मार्केट्स। फॉरेक्स एक ही है ना सर, फॉरेक्स मार्केट या करेंसी मार्केट सेम होता है। उस दिन एक दिन मुझे पूछ रहा था कि आप फॉरेक्स मार्केट के बारे में बताइए, बोले वही करेंसी का मार्केट वही है फॉरेक्स मार्केट। बोले नहीं नहीं अलग है। चलो आपको जो ठीक लगे। अब जो समझना नहीं चाहता उसको कैसे समझाओ, उसने कहीं से एक वर्ड सुन लिया फॉरेक्स, हाँ बस उसी के पीछे। तो फॉरेक्स और करेंसी मार्केट यूजिंग ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज। अब इसमें कैसे ट्रायंगुलर होगा मैं आपको बताता हूँ, जो बात अभी सुमित बता रहा था। वेरी गुड सुमित, सुमित आजकल बड़ा अपडेट कर रहे हैं अपने आप को। द ट्रेडर कन्वर्ट्स वन करेंसी टू अनदर, एक करेंसी को दूसरे करेंसी में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट दैट सेकंड करेंसी टू ए थर्ड एंड फाइनली कन्वर्ट द थर्ड करेंसी बैक टू द ओरिजिनल करेंसी। देख सुमित कैसे होगा, देख बड़ा इंटरेस्टिंग है। ट्रायंगुलर नाम इसीलिए दिया हुआ है, ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज। माने ऐसे हम लोग बोलते हैं ना त्रिकोण प्रेमेर कहानी, ऐसे थोड़ा एडल्ट काइंड ऑफ कहानी होता है ना, त्रिकोण, ठीक है, तो उस तरह का ट्रायंगुलर, ठीक है। वहां पर लव स्टोरीज होते हैं, यहाँ पर आर्बिट्रेज होते हैं। देखो माने एक बार इसको प्यार करो, उस बार उसको प्यार करो, फिर लास्ट में ओरिजिनल पे वापस आ जाओ। सर ये कैसे संभव है? देखो सपोज यू हैव $1 मिलियन इन योर पॉकेट। सर 1 मिलियन, हाँ 10 लाख और डॉलर के साथ इंटू कर लो। सर 1 लाख में भी नहीं चलेगा, हाँ चलेगा रे बाबा, चलेगा 50,000 में भी शायद हो जाएगा। सपोज यू हैव $1 मिलियन एंड यू आर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग एक्सचेंज रेट्स, ठीक है। एक्सचेंज रेट माने जैसे यूएस डॉलर और यूरो का एक्सचेंज रेट दिया है। सिमिलरली आप अगर आप डेरिवेटिव, करेंसी डेरिवेटिव चेक करोगे ना, तो करेंसी डेरिवेटिव चेक करोगे तो आपको इंडियन रुपीस के साथ क्या रेट चल रहा है वो भी देखने को मिलेगा। कहाँ जाने से देखने को मिलेगा? मार्केट डेटा सर, नहीं मार्केट नहीं, और डेरिवेटिव, सॉरी डेरिवेटिव में करेंसी। ये देखो सर यूएसडी आईएनआर दिख रहा है सबको, ये ऑप्शंस है सब, स्ट्राइक प्राइस वगैरह सारा अवेलेबल है। यूएसडी आईएनआर ये सब यूएसडी आईएनआर है। और भी मार्केट चलता है, बाकी कुछ दिख नहीं रहा है आज। यहाँ पर सारे के सारे यूएसडी आईएनआर है। मोस्ट एक्टिव कॉल, क्रॉस करेंसी में कुछ है क्या? मतलब एक्चुअली येन, युआन, बहुत सारे और भी करेंसी इसके साथ ट्रेड होता है, ठीक है। बट यहाँ पर अभी मुझे PHA আছে না একটা किटा সুইজারল্যান্ডে, PHA সুইজারল্যান্ডে তোমার কারেন্সি। स्विट्जरलैंड है ना चेक रिपब्लिक है? स्विट्जरलैंड, আর সুইজারল্যান্ড আছে PHA। अच्छा अच्छा। ये देखो सर यहाँ पर क्रॉस करेंसी में है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यूएस डॉलर, ठीक है। ये देखो लास्ट ट्रेडेड प्राइस दिख रहा है, ये देखो ये यहाँ पर है यूएस আর ইউএস डॉलर, আর হচ্ছে जब জাপান, जब हाँ জাপানের जेपीवाई मैंने কারেন্সি রেট। जापान येन, हाँ ठीक है, येन येन येन, यूएस डॉलर, जापान येन, यूरो, यूएस डॉलर, ठीक है। सिमिलर चीजें आपके सामने यहाँ पर भी है, ठीक है, ये मिल जाएगा। एक मार्केट समझ जाओ तो बाकी मार्केट समझना इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। आप लोग स्टॉक मार्केट समझ रहे हो ना, तो धीरे धीरे देखना करेंसी, कमोडिटी, इंटरेस्ट বলে रेट দাদা सारा। এটাকে বেস কারেন্সি, বেস हाँ কারেন্সি আর কি বেস কারেন্সি আর ওটা কি কি বলে জানো পিছনেরটাকে?
কোয়েশন কারেন্সি না এরকম একটা কিছু বলে মেবি। কি জেনেছি তখন আমার খেয়াল নেই। দেখ, तो सपोज यू हैव वन सपोज यू हैव 1 मिलियन इन योर पॉकेट और आपको यूएस डॉलर और यूरो के बीच में आप एक्सचेंज करना चाहते हो, कन्वर्ट करना चाहते हो, तो उसमें आपको एक एक्सचेंज रेट दे रहा है। यूरो और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में दे रहा है, यूएस डॉलर एंड ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में दे रहा है, ठीक है। तीन रेट आपके सामने हैं। अब आप इसके अंदर ना आर्बिट्रेज करोगे एक्सचेंज रेट के बेसिस में। तो कैसे काम होगा देखो, आपके पास कितना है 1 मिलियन, याद रखना बात को। तो आप क्या करोगे, आप से फॉर एग्जाम्पल सेल डॉलर्स टू बाई यूरो, आप डॉलर सेल कर रहे हो ताकि यूरो बाई कर सको, ठीक है। तो सेल डॉलर्स टू बाई यूरो, अगर आपको ये एक इक्वेशंस में जाना है तो आपके पास है 1 मिलियन, ठीक है, $1 मिलियन। तो $1 मिलियन को अगर हम लोग एक्सचेंज रेट जो यूरो और डॉलर के बीच में है दैट इज 1.1586, हेलो, डॉलर एंड यूरो के बीच में 1.1586 एंड यू हैव $1 मिलियन। तो अगर आपको इसको यूरो में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे, 1 मिलियन डिवाइडेड बाई 1.1586, हेलो, समझ में नहीं आया सर, है ना। হ্যাঁ अगर आपके पास $1 मिलियन है और अगर आप उसको यूरो में कन्वर्ट करना चाहते हो और आपको एक्सचेंज रेट पता है तो जस्ट डिवाइड दिस, है ना। तो आपको कितना यूरो मिलेगा, 8,63,110 यूरो। अब तुमने डॉलर सेल कर दिया यूरो बाई करने के लिए। सेकेंड पॉइंट में तुम यूरो सेल करो पाउंड बाई करने के लिए, पाउंड बने ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ठीक है। सेल यूरोज टू फॉर पाउंड्स, तो आपके पास कितना यूरो है, 8,63,110। तो 8,63,100 यूरो को आप कन्वर्ट करना चाहते हो पाउंड में, तो इसके लिए आपके पास एक्सचेंज रेट है अगेन, एंड यूरो और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का एक्सचेंज रेट गिवन है, ये मिल जाता है मार्केट से 1.4600, मैंने एक्चुअली 1.46। तो 1.46 जो भी डेटा आपके पास है उससे डिवाइड कर दो, तो आप सेल कर लो यहाँ पर। तो आपके पास कितना पाउंड आ गया, 5,91,171। नाउ सेल पाउंड्स फॉर डॉलर्स, वापस डॉलर में आना है, सेल पाउंड्स फॉर डॉलर, डॉलर पाउंड सेल करो सर। 5,91,171 पाउंड आपके पास है, जीबीपी मैंने ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। अब इसको अगर आप डॉलर में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास पाउंड और डॉलर के बीच में क्या इक्वेशंस है, 1.6939, है ना, 1.6939। अब आपको क्या करना है, वापस कहाँ आना है, डॉलर में आना है। तो आप क्या करोगे, इस बार और डिवाइड नहीं करोगे, इस बार आप इनटू कर दोगे। तो आपका वैल्यूएशन देखो सर चेंज हो गया। आपके पास 1 मिलियन था, आपके पास 1 मिलियन था, बट अभी आपके पास देखो जैसे ही आपने 591,171 को 1.6939 जो डॉलर और पाउंड के बीच का एक्सचेंज रेट है उसमें आप इंटू कर दिए, तो आप ऑटोमेटिकली आपका 1 मिलियन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। आपका $1 मिलियन इंक्रीज हो गया और चेंज होके कितना हो गया, 1,1384। अब अगर आपको डिफरेंस चाहिए तो वेरी सिंपल ना, 1,1384 माइनस 1 मिलियन, माइनस कर दो, तो आपको एक्चुअली $1384 मिल गया। दिस इज द ट्रायंगुलर लव स्टोरी सर। कौन सा लव स्टोरी, ट्रायंगुलर लव स्टोरी, किसके बीच में, आर्बिट्रेज के बीच में। ये करेंसी आर्बिट्रेज हो गया सर, ये मार्केट में बड़ा पॉपुलर है, ठीक है। ऑब्वियसली थोड़ा समय लगता है अपना हाथ को पकाने में, माने ग्रिप बनाने में, बट कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है। अब इसी चीज को बार बार करते 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 आदत होगा। और करेंसी का एक अलग फंडा है, उसको समझना है। करेंसी का एक अलग फंडा होता है कि करेंसी वर्ल्ड वाइड कैसे काम करता है, उसका मूवमेंट कैसे होते हैं। जैसे आप स्टॉक का मूवमेंट ढूंढते हो वैसे करेंसी का भी मूवमेंट ढूंढना पड़ेगा, उसके पीछे इकोनॉमिक्स का बड़ा मतलब डेप्थ नॉलेज चाहिए आपको, ठीक है। হ্যালো। उसमें हाँ बोलो सर। তবে একটা জিনিস আমি দেখছিলাম যেটা হচ্ছে কি কারেন্সি 24 ঘন্টা মার্কেটে ওপেন থাকে, हम्म ঠিক আছে? কোনো না কোনো এক্সচেঞ্জে ওপেন থাকে। এবার তুমি যদি हम्म একটু দেখো যে আরবিআই যে আমাদের যখন ট্রেড হয় 9টা থেকে 5টা অবধি মনে হয় আর কারেন্সি ট্রেড হয়, हम्म। ঠিক আছে? 9টার সময় যখন মার্কেট ওপেন হবে আমাদের ইন্ডিয়ার মার্কেট, তখন পুরো ওয়ার্ল্ডে কিন্তু আইএনআর এর দামটা একটু হাই হয়ে যায়। পুরো সেম কনসেপ্টে তোমার যখন আমেরিকার মার্কেট ওপেন হয় তখন ডলারের দামটা একটু বেশি হয়ে যায়। সেম কনসেপ্টে চলে।
মানে তুই বলতে চাইছিস এটা ডিফারেন্সটাকে আরবিট্রেজে ইউজ করা যায়, তাই তো? হ্যাঁ, এটাও আরবিট্রেজে ইউজ করা যায়। एग्जैक्टली। तो बेसिकली यही होता है सर। अब जो सुमित अभी आईएनआर और इसका बताया, लेकिन दिस ऑल कॉन्सेप्ट बिलोंग्स टू आर्बिट्रेज। तो आर्बिट्रेज को आप कहीं पर भी यूज करो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो। और ये बड़ा रिस्क फ्री है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है ना, होगा कि नहीं होगा इसका रिस्क नहीं है, डिफरेंस है तो मिलेगा। सो फ्रॉम दिस ट्रांजेक्शन यू वुड रिसीव आर्बिट्रेज प्रॉफिट ऑफ 1384। ठीक है। अच्छा, मान के चले यहाँ पर कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट या टैक्स वगैरह यहाँ पर हम लोग काउंट नहीं किए, वो होगा। हर एक इकोनॉमी में ये चीज रहता है, डिपेंडिंग ऑन द कंट्री टू कंट्री। आप सबको पता है इंडिया में भी अपना टैक्स सिस्टम है, तो जब हम लोग करेंसी वगैरह पढ़ेंगे तब टैक्स के बारे में पढ़ लेंगे। यस, कोई क्वेश्चन आ रहा था क्या? बोलो। হ্যাঁ স্যার, বলছিলাম মানে আপনি যে কারেন্সি যেটা বললেন ইন্ডিয়ান আর ডলারের মানে রিসেন্ট মানে ইকোনমিক্সের অনুযায়ী মানে রিসেন্ট যা ইন্ডিকেশন দিচ্ছে তো ওতে রুপি ডেপ্রিসিয়েট হওয়ার পসিবিলিটি অনেক বেশি। রুপি ডেপ্রিসিয়েট হওয়ার পসিবিলিটি অনেক বেশি, মানে বেসিক্যালি ডলারের ভ্যালু বেড়ে যাবে, তাই তো? কারণ এখন তো মানে যতগুলো ওপেক কান্ট্রিগুলো আছে ওরা অয়েলের সাপ্লাইয়ের মধ্যে কাট ডাউন করছে, আর আমরা তাও 83% অয়েল বাইরে থেকে ইম্পোর্ট করি। অটোমেটিক্যালি এখন ট্রানজ্যাকশন রুপিতে হচ্ছে, কিন্তু সবকটা কান্ট্রিতে রুপি অ্যাকসেপ্ট করছে না। ইউএইর সাথে আমরা করেছি, কিন্তু বাকি কান্ট্রিগুলো এখনো ডলারে আছে। রাশিয়ার সাথে রুবেলে করে হয়েছিলাম, রাশিয়া বলছে যে রুপিতে কেন হবে, আমাদের রুবেলে কেন হবে না, ওই নিয়ে ডিসকাশন বন্ধ হয়ে গেছিল। তার যেগুলো আমাদের ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট কান্ট্রিজ আছে, মানে আমাদের টোটাল 13টা কান্ট্রিজ ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট আছে। কালকে একটা ইকোনমিক ডেটা দেখছিলাম, ওখানে আমাদের যে ট্রেড ডেফিসিট ওটা লাস্ট কোয়ার্টারে মানে আগের বছরে জুন 2022 ওটা $27 বিলিয়ন মতো ট্রেড ডেফিসিট ছিল। ওটা এবছর বেড়ে মানে এই জুন কোয়ার্টারের ডেটা অনুযায়ী ওটা $30 বিলিয়ন হয়ে গেছে, কারণ আমাদের ইম্পোর্ট আমরা বেশি করছি, এক্সপোর্ট করছি না। এক্সপোর্ট প্রায় 14-16% আমাদের ফল করে গেছে। ঠিক আছে। আর তারপরে এখন রিসেন্ট যেহেতু ইউএস এর ট্রাভেল চলছে বাইরের কান্ট্রিগুলোতে, এবার ফরেন ইনফ্লো ইন্ডিয়া থেকে বাইরে যাচ্ছে মানে রিসেন্ট অনুযায়ী। এবার প্রবলেম কি, মানে রিসেন্ট যেমন রুপি ডেপ্রিসিয়েটেড করেছিল, এবার যখন ফরেন কারেন্সি ইন্ডিয়া থেকে বাইরে যায় তখন তো আমাদের ফরেক্স রিজার্ভ কমতে থাকে। তখন রুপি ডেপ্রিসিয়েটেড হয়। এবার আরবিআই কে কি করতে, রুপিকে মানে প্রোটেক্ট করার জন্য তখন আরবিআই ওপেন মার্কেটে এসে ডলারকে সেল করে, যাতে ডলারের সাপ্লাই না, এটারও একটা সাবস্টিটিউট আছে যেটা গোল্ড হিসেবে মেজারমেন্টও হয়। শুধু যে ফরেক্স ইনভেস্টমেন্ট, গোল্ডেও মেজারমেন্ট চলে। গোল্ড মেজারমেন্ট চলে, বাট ও ঠিকই বলছে, নন্দন ঠিকই বলছে। বল নন্দন, বল। হ্যাঁ, তো এটাই হচ্ছে। তার মধ্যে রিসেন্ট যে ক্লাইমেট ডিজাস্টার গুলো হয়েছে ইন্ডিয়া, অনেক নিউজে তো দেখেছেন রিসেন্ট মানে অনেকদিন আগে হুইট এক্সপোর্ট বন্ধ করে দিয়েছিল। তার রাইস এক্সপোর্ট বন্ধ করলো, নন বাসমতি রাইসের উপর এক্সপোর্টের উপর $40 এক্সপোর্ট ডিউটি চাপিয়েছে। রিসেন্ট অক্টোবরে কালকে নিউজ এসেছে ইন্ডিয়া সুগার এক্সপোর্ট ব্যান করে দেবে। মানে আগে 6.1 মিলিয়ন টন ক্যাপ ছিল যে এত বেশি এক্সপোর্ট করা যাবে, ওটাকে ব্যানই করে দেবে। মানে আর সুগারও এক্সপোর্ট করা যাবে না, কারণ ইন্ডিয়াতে মানে দুটো স্টেটই আছে, মহারাষ্ট্র আর কর্ণাটকা, যারা ওভারঅল 50%-এর উপর সুগার প্রোডাকশনে কন্ট্রিবিউট করে। কিন্তু ক্লাইমেট ডিজাস্টারের জন্য সুগার এবছর সেরকম মানে সুগার কেন থেকে তৈরি হয়নি সেরকম সুগার। তার মধ্যে থাইল্যান্ড হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের লার্জেস্ট সুগার প্রডিউসার। ওদের ওখানে ক্লাইমেট ডিজাস্টারের জন্য ওদের প্রোডাকশন আউটপুট 37% কাট ডাউন হয়ে গেছে। তো ওরাও বলেছে আমরা সাপ্লাই করতে পারবো না। ঠিক আছে। আর সেম ইন্দোনেশিয়ার সাথে, ইন্দোনেশিয়া ব্রাজিল এরা ওয়ার্ল্ডের লার্জেস্ট কফি প্রডিউসার। এবার ওদের ওখানে সিজন এরিয়ার জন্য কফি বিন ওরা সাপ্লাই কাট ডাউন করে দিয়েছে। ঘানাও সেম করেছে। ঘানা এবার ওই যে চকলেটে যে কোকাও ইউজ হয়, কোকোয়া, ঘানা লার্জেস্ট প্রডিউসার। ঘানা বলছে আমাদের বৃষ্টির জন্য আমাদের 40% প্রোডাকশন বন্ধ হয়ে গেছে। ঘানাও এবার সাপ্লাই কাট ডাউন করে দিচ্ছে। মানে বেসিক্যালি তোর তুই যে কনসেপ্ট গুলো বলছিস এগুলো সবই একটা মানে আপকামিং সিচুয়েশন। সেটা অনেক কোনো বছর হয়, কোনো বছর আবার ঠিক হয়ে যায়। ঠিক আছে, হয়তো 2024-25 এ প্রবলেম হলো, আবার 26 অনওয়ার্ডস ঠিক হয়ে গেল। ইটস অল अबाउट যেটা তুই ওয়েদার রিলেটেড বলছিস। ঠিক আছে, মানে বেসিক্যালি দেখ, नंदन ने जो भी पॉइंट्स बता रहा है ना सर,
ये एक मार्केट। हाँ बोल नंदन बोल। মানে টেম্পোরারি ফ্যাক্টর, কিন্তু ইন্ডিয়া এবার কোনোভাবে চায় না যে ফুড ক্রাইসিস আমাদের কান্ট্রিতে হোক, কারণ অবভিয়াসলি রিসেন্ট কোনোভাবেই চাইবে না, নিশ্চয়ই। এত বড় সব থেকে সিম্পল কথা, এত বড় একটা সংসার আমাদের, ঠিক আছে? বড় সংসার মানে বুঝিস তো, বড় সংসার মানে বড় ফ্যামিলি, আর বড় ফ্যামিলি সবারকে পেট চালাতে হবে। শুধু বিদেশকে খাইয়ে দিয়ে তারপর দেখা যাবে টাকা তো আর খেতে পাবো না, মানে কারেন্সি তো আর খাওয়া যায় না, খেতে গেলে খাবার খেতে হয়, ঠিক আছে? তো বেসিক্যালি দেশের দেশের হ্যাঁ বল। বলছি আর কি যে ওই যে থাইল্যান্ডটা, তো আমি ভাবছি যে থাইল্যান্ডের থেকে ইন্ডিয়া বেশি প্রডিউস করে না সুগার। সুগার মানে ওরা বেসিক্যালি পার্সেন্টেজটা ওদের বেশি হয়, মানে ইন্ডিয়ার কিন্তু প্রোডাকশন টোটালটা বেশি, মানে নাম্বার অফ এটা মেট্রিক টনের হিসেবে ইন্ডিয়া বেশি করে। 2022-এ তো লার্জেস্ট এসেছিল আমার যতটা খেয়াল আছে। মনে হচ্ছে, আমি আমাদের লেটেস্ট আপডেটটা নেই। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट হচ্ছে যেটা नंदन नंदन जो मेन प्रॉब्लम रेज कर रहा है, ये प्रॉब्लम जेन्युइनली है, ठीक है? अब इसका एक ही सब्स्टिट्यूट है सर, कि पहला चीज कि इंडिया अपना बनाया हुआ प्रोडक्ट यूज करे, ठीक है? इंडिया स्पेशली टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, स्पेशली टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, बिकॉज टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स का जो एक्सपोर्टिंग कॉस्ट इंपोर्टिंग कॉस्ट होता है ना, और हम लोग मेनली एक्सपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का रेट सस्ता है, और उल्टा साइड में टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट इज एक्सपेंसिव। तो नो डाउट तुम इंपोर्ट कर रहे हो महंगा और बेच रहे हो सस्ता वाला, ठीक है? तो तुमको कहीं ना कहीं इसको सब्स्टिट्यूट करना है। एक उपाय है, देखो रातों रात इंडिया जापान नहीं बन सकता, ठीक है? मतलब बी प्रैक्टिकल है सर। अगर हम बोलेंगे कि नहीं नहीं हम लोग चुटकी में जापान जैसा टेक्नोलॉजी या जर्मनी जैसा टेक्नोलॉजी कर लेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा, इसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है? भड़काऊबाद बंद करना चाहिए, ऑपोजिशंस को भी साथ में आना चाहिए, ठीक है? अब कंट्री ये सब भड़काऊबाद में चलेगा कि देखो सर, अगर एक लीडर है, मैं मान रहा हूँ कि ऑपोजिशन पोजिशंस में आना चाहता है, लेकिन भड़काऊबाद से क्यों? बाकी कंट्रीज क्या नहीं करते हैं चेंज? क्या बाद बाद में भड़काते हैं, इधर जला देते हैं उधर जला देते हैं, हाँ सांप्रदायिक इश्यूज को रेज करता है? कोई मतलब नहीं है ना। ये इंडिया का पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत बर्बाद है। इंडिया एक अच्छा ट्रैक के साथ है सर, करेंटली एक अच्छा मूवमेंट है इंडिया का। इस मूवमेंट को ऑपोजिशन को भी हेल्प करना चाहिए कि कंट्री फर्स्ट। अरे भाई ऑपोजिशन अच्छा करेगा ना कंट्री के लिए, तो पब्लिक भी देखेगा, पब्लिक भी देखेगा कि भाई चलो ठीक है, कल अगर मोदी को बीजेपी को हटाना है हटा देंगे, 5 साल 10 साल किसी और को मौका देंगे क्योंकि वो भी अच्छा करेगा। लेकिन अगर कंट्री का जो ग्रोथ है उसको अगर तुम पहिया को ही बंद करना चाहोगे ना किसी भी तरह से, वो प्रॉब्लम करेगा सर। तो इंडिया कर लेगा 10 15 साल 20 साल में इंडिया कर लेगा, बट पॉइंट इज दैट वही जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड इश्यूज बोला ना, या तो देखो तुम अगर तुम एक्सपोर्ट बंद कर इंपोर्ट बंद कर दोगे तो इंडिया को बहुत सारे अपडेटेड चीजें नहीं मिलेगा, और क्योंकि इंडिया अभी टेक्नोलॉजी में इतना भी अपडेट नहीं हो पाया, बट इंडिया को अपने प्रोडक्ट पे भरोसा करना पड़ेगा जैसा चाइना ने करके दिखाया, स्पेशली फोन वगैरह में एटलीस्ट तो कर ही सकते हैं हम लोग, है ना? ऐसे रिसेंटली मोदी जी आने के बाद कुछ चीजें किया है कि फॉरेन कंपनीज को भी इंडिया में मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा ताकि बाहर से एक्सपोर्ट ना हो, एटलीस्ट मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट डेवलप हो, तभी जाके ओप्पो वीवो साउमी ये सब कंपनीज हमको इंडिया में देखने को मिला। बट दैट इज नॉट द परमानेंट सोल्यूशन, ये तो बस एक छोटा सा सोल्यूशन है। अब बोलोगे सर मोदी जी फॉरेन कंपनीज को मौका दे दिया, अच्छा इंडियन कंपनीज के पास तो इतना नॉलेज नहीं है ना कि वो कर सके, तो फॉरेन कंपनीज के पास नॉलेज है क्योंकि हमारे एजुकेशन में हम लोग पीछे रह गए ना, और जो हमारे पास है जैसे हमारे एग्रीकल्चर वो हमारे पास है उसमें भी हम पीछे रह गए। मतलब जिसमें तुम्हारा, क्योंकि किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता, पॉइंट टू बी नोटेड सर। फ्रूट सेलर का बेटा फ्रूट सेलर नहीं बनना चाहता, जो चावल उगाता है उसका बेटा चावल नहीं उगाना चाहता, क्यों? बिकॉज दे लैक ऑफ इंटरेस्ट, मार्केट खराब है, गवर्नमेंट चाल चावल दाल को लेके भी बिजनेस करता है, चासी का बिजनेस है उसको करने दो, फार्मर का बिजनेस फार्मर को करने दो, क्यों गवर्नमेंट बीच में पड़ जाता है? उसको लेके क्यों पॉलिटिक्स, चाल डाल का पॉलिटिक्स क्यों गवर्नमेंट करेगा? पॉइंट टू बी नोटेड सर। चाल डाल कितने में मार्केट में बिकेगा, कंट्रोल रखे, पर एटलीस्ट फार्मर्स को उसका मार्केट छोड़ दे, फार्मर को डिसाइड करने दो ना कि कहाँ चाल बेचने से पैसा मिलेगा, कहाँ डाल बेचने में पैसा मिलेगा, वो ठीक करेगा कि हमको आरामबाग में बेचना है कि नोदिया में बेचना है, हाँ मिदनापुर में बेचना है कि बर्धमान में बेचना है, उसको डिसाइड करने दो।
गवर्नमेंट क्यों हर चीज में आके रोक लगाता है? ये कारण इसके कारण क्या हो रहा है बोलो तो, हम लोग एक लॉन्ग टर्म डेफिसिट में जा रहे हैं। जो प्रॉब्लम, ये जो ट्रेड डेफिसिट का बात तुम कर रहे हो, क्यों ट्रेड डेफिसिट हो रहा है? बिकॉज फार्मिंग में इनोवेशन नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको तो पता है कि हम जो भी करें मिलेगा तो उतना ही। पीयूष मेरे को इसको अच्छा गाइड कर सकता है। क्या पीयूष, मैं सही बोल रहा हूँ? আপনি ঠিক কথাই বলছেন স্যার। মেন সমস্যা হচ্ছে কি, বড় বড় কোম্পানি তাদের প্রোডাক্ট যখন করে তারা নিজেদের ইচ্ছা মতো দাম পায়, মানে তাদের একটা ট্যাক্স ফ্যাক্স বসিয়ে তারা নিজের মতো বিক্রি করতে পারে। কিন্তু যখন এখানে চাষিদের কোনো একটা জিনিস তৈরি হচ্ছে, আলু, ধান, পাট যাই বলুন, বাদাম, এক্ষেত্রে যখন আলুর যখন দাম বাড়তে শুরু করে দিচ্ছে, তখন আমাদের পশ্চিমবঙ্গের কথাই বলছি, তখন সরকার কি করছে, বাইরে এক্সপোর্ট বন্ধ করে দিচ্ছে, মানে বাইরের রাজ্যে না যেতে পারে। যেতে এর ফলে পারে। কি হচ্ছে, এখানে প্রোডাকশন হাই হয়ে রয়ে গেছে, মানুষ বেশ বিক্রি করতে পারছে না, তখন মানে যে দাম পাচ্ছে সেই দাম বিক্রি করে দিচ্ছে। আবার এক্স্যাক্টলি। ঠিক সেম হচ্ছে, যখন চাষিদের যখন জিনিস বিক্রি মানে শেষ হয়ে গেছে, তখন আবার বাইরে এক্সপোর্ট শুরু করছে। কিন্তু অনেক সময় কি হয়, যখন ওয়েস্ট বেঙ্গলে যখন প্রোডাকশন হচ্ছে, তখন বাইরে থেকে আলু ঢোকাচ্ছে, মানে বাইরে থেকে প্রোডাকশনে মাল ঢুকিয়ে দিচ্ছে। এর ফলে কি হচ্ছে, চাষিরা তো দাম পাচ্ছেন না। এবার আমি হয়তো 50,000 টাকা ইনভেস্ট করে একটা ব্যবসা করেছি, মানে হয়তো ফসল করেছি, আমি হয়তো তার থেকে দেখলাম 5,000 টাকা আমার লাভ হচ্ছে না। আমার সেখানে 3 মাস আমার সেখানে টাইম ইনভেস্ট হয়েছে। আমি কেন করবো তার জিনিসটা? এটাই তো কথা। এবারে এই পাটের ব্যবসাটা, মানে পাটের এখন তো জুট মিল পুরো ওয়েস্ট বেঙ্গলে শেষ হয়ে গেছে। শেষ হয়ে গেছে, এক্স্যাক্টলি। চাষিরা কষ্ট করে করেছে, এখন আপনার 1 কুইন্টাল পাটের দাম পড়ছে 4,000 টাকা। সেই 4,000 টাকার জন্য চাষীকে তো 2 মাস 3 মাস তো খাটতে হয়েছে, এত কাজ করে। তাহলে কেন সে করবে? আস্তে আস্তে কেন পাট করবো? জিনিস বন্ধ করে দেবে। তার আলুটাও এখন খালি একটু মার্কেট আছে বলে তাও করে। আস্তে কিন্তু আস্তে তার মানে কি ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে পাটের ডিমান্ড নেই? হিউজ ওই ডিমান্ড, সমস্যা। হিউজ ডিমান্ড। কিন্তু শুধু ইন্টারনাল পলিটিক্স কে টিকিয়ে রাখার জন্য মানে কাউকে বাড়তে দেওয়া হবে না। আমি জানি না এগুলোকে কবে ঠিক করা হবে। সিরিयसली बिग इश्यूज, মানে प्राइम मिनिस्टर, एवरी स्टेट का चीफ मिनिस्टर, सबको मिलके काम करना चाहिए सर। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारा ऑपोजिशन करना है तुम करो, कौन मना करता है? हर काम थोड़ी मोदी जी सही करता है, कुछ ना कुछ गलत वो भी करता है। तुम मुद्दा उठाओ ना, लेकिन देश को पीछे जाके क्यों? ये सही नहीं है। पब्लिक को कब समझेगा पब्लिक? देखो पीयूष पीयूष एग्रीकल्चरल फैमिली से है, वो करता भी है, मुझे पता है, इसीलिए मैंने पीयूष का नाम लिया। ये प्रॉब्लम है सर, ये लार्ज स्केल में ठीक करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट को कुछ नहीं देखना चाहिए, देखना चाहिए। इंडिया बिग कंट्री है, बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि एटलीस्ट जैसे कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। हाँ बोल। তো তাহলে কি, তাহলে তো এটা বলা যায় সৌদি হলে তেল বন্ধ করে দিতে পারে তেলটা। তো ওদের তো এটা এটা ব্যবসা, ওরা তো জানে ওরা দিলে ওদের ক্যাপিটাল বাড়বে বা ইকোনমি বাড়বে। কাদের কথা বলছিস আরেকবার বল। সৌদি সৌদি সৌদি, হ্যাঁ ভারত ওরা তো স্যার তেল দেয় আমাদের, আমাদের বলে পুরো অল ওভার ওয়ার্ল্ডে তেল বিক্রি হচ্ছে। তো এটা তো বিজনেস একটা, যে এটা দিলে আমাদের একটা রেভিনিউ জেনারেট হবে বা হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি grow ওটাই। হবে। হ্যাঁ এবারে ওখানে তো এটা কন্ট্রোল আমাদের গভর্নমেন্টের হাতে। যেটা আমাদের, এটা তো আমাদের একটা ফিউচার প্রতি একটা ভালো সম্ভাবনা যে আমাদের এখান থেকে এটা এক্সপোর্ট হলে আমাদেরই লাভ বাড়বে, মানে আমাদেরও সাধারণ মানুষেরও হবে, হ্যাঁ, গভর্নমেন্টের রেভিনিউ। কিন্তু ইন্ডিয়াকে না আরো অনেকগুলো জিনিস বানাতে হবে, কারণ ইন্ডিয়াকে টেকনোলজিতে সেলফ সাফিসিয়েন্ট হতে হবে। কারণ আমরা ম্যাক্সিমাম চায়নার থেকে ইম্পোর্ট করি, আর আমরা যদি সেলফ সাফিসিয়েন্ট না হতে পারি, আমাদের এই প্রবলেমটা কোনোদিন মিটবে না। আর এটার জন্য একটা প্রপার গাইডেন্স আর প্রপার লিডার নিয়ে চলতে হবে, যে সত্যি আমাদেরকে এটাতে লিড করবে। মানে এরকম লিডার দরকার। যদি কালকে মোদিজি নাও থাকে, এমন কোন লিডার দরকার। ওইসব ফালতুর পলিটিক্যাল, মানে যারা শুধু প্রোপাগান্ডা বানায়, এরকম লিডারশিপে দিয়ে হবে না। যারা জেনুইন কাজ করবে, আর সেটা পাবলিককে বুঝতে হবে কি কে জেনুইন, এইটুকু বোঝার ক্ষমতা পাবলিকের আছে। ঠিক আছে, সময় লাগবে, হয়তো 20 বছর সময় লাগবে, বাট অ্যাটলিস্ট এরকম একটা লিডারকে নিয়ে চলতে হবে। মানে না হলে হবে না। এই ট্রেড ডেফিসিটটা মানে इमीडिएट इफेक्ट এটাকে অত সহজে আমরা নামাতে পারবো না। ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए अभी वक्त लगेगा, बट एटलीस्ट टेक्नोलॉजिकल सफिशिएंसी तो हो जाए। तो फिर नंदन का ये जो प्रॉब्लम है ना, माने नंदन का प्रॉब्लम नहीं, नंदन जो प्रॉब्लम रेज किया है, एंड ये जेन्युइन रेज किया है। अगर अगर नंदन जो फोकस दिया, ये एक्चुअली नंदन ने खुद थोड़ी किया, तो पढ़ा है। और ये इकोनॉमिक फोरम का वर्ल्ड वाइड एक डेटा है, अलग अलग लोग लिखते हैं। इंडिया टुडे लिखता है, आउटलुक बोल के एक पेपर होता है वो लिखता है। ठीक है, बहुत सारे बारबेक्यू, क्या बोलते हैं उसको, बारबेक्यू नहीं,
बीक्यू प्रीमियम, वो क्या बोलते हैं उसको, पेपर का नाम भूल गया, ब्लूमबर्ग, ब्लूमबर्ग ब्लूमबर्ग बोलते हैं ना सर, ब्लूमबर्ग क्विंट, वो भी लिखता है। हाँ BQ ब्लूमबर्ग, प्राइम। हाँ बीक्यू प्राइम वो भी लिखता है। पर ये लोग गवर्नमेंट को थोड़ा क्रिटिसाइज करते हैं, ये जो बीक्यू है ना, ये करंट गवर्नमेंट को थोड़ा क्रिटिसाइज करता है, नहीं ऑलवेज इंडिया का डेंजर जोन को दिखाते हैं ठीक है, इंडिया टुडे, इंडिया का डेंजर जोन को दिखाते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि कौन प्रो गवर्नमेंट काम लिखता है और कौन एंटी गवर्नमेंट लिखता है। तो बीक्यू एंटी गवर्नमेंट लिखता है, इंडिया टुडे भी एंटी गवर्नमेंट लिखता है, इकोनॉमिक टाइम्स न्यूट्रल लिखता है, बिजनेस टुडे प्रो है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स प्रो है, हिंदुस्तान टुडे का। सो अलग अलग का अलग अलग कॉन्सेप्ट है, बट यस, बट अगर जेन्युइनली सोचा जाए, कंसर्न एकदम सही है, मैं भी मान रहा हूँ सर, कंसर्न सही है। बट इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए एक ही उपाय है, टेक्नोलॉजिकल सफिशिएंसी ग्रो करे और अपने प्रोडक्ट पे भरोसा करे। जो भी हो, हमें नहीं चाहिए फर्स्ट फॉरवर्ड आईफोन, हमें नहीं चाहिए Xiaomi ओप्पो जैसे मोबाइल फोन, हमें नहीं चाहिए हाई फाई कैमरा, जो इंडियन कंपनी बनाएगा इंडियंस वही यूज करेगा। क्या इंडियन ये काम कर सकता है? इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट भी डायरेक्टली बैन तो नहीं कर सकता ना, तुम डायरेक्टली बैन कर दोगे ना चाइनीज प्रोडक्ट हर केस में, तो ये कोल्ड वॉर छिड़ जाएगा और ये इंटरनेशनल ट्रेड का जो एक कनेक्शन है ना उसको तोड़ देगा। तो जानबूझ के नहीं करेगा, इंडिया को ऐसा करना है कि ऑटोमेटिकली इंडियन मार्केट से डिमांड को कम करो, मैंने ऐसा हो जाए कि लोग दुकान में जाके इंडियन फोन ही बाई करें, दुकानदार भी इंडियन फोन बेचे, तो ऑटोमेटिकली चाइनीज फोन का बिकना बंद हो जाएगा, तो फिर ऑटोमेटिकली चाइनीज का सप्लाई भी बंद हो जाएगा। लेकिन क्या इंडिया ये करेगा? স্যার এটা তো মানে হ্যালো বিগেস্ট প্রবলেম। হ্যাঁ স্যার শুন, হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি, বল। মানে এটাই তো বিগেস্ট প্রবলেম, মানে ইন্ডিয়ার কারেন্ট যে সিচুয়েশন, ইন্ডিয়ার এখন ব্যাকওয়ার্ডসে যাবে না, মানে আপনি যেটা বলছেন ওটা মাস মার্কেট সেগমেন্ট হয়ে গেল, মানে যেখানে ব্র্যান্ডিং অতটা ওয়ার্ক করবে না, আমরা ইন্ডিজিনিয়াস প্রোডাক্টের উপর বেশি ফোকাস করবো, কিন্তু ইন্ডিয়া তার ওই ট্রানজিশনটা হবে না, কারণ ইন্ডিয়া এখন মানে ইকোনমিক্যালি সম্পূর্ণ অ্যাসপিরেশনাল মুভমেন্টের দিকে যাচ্ছে, ঠিক আছে। আর মাস মার্কেট যে সেগমেন্টটা ছিল বা ইকোনমিক যে সেগমেন্টটা ছিল, ওটা কোভিডের পর পুরো শেষ করে দিয়েছে ওই সেগমেন্টটাকে। না কিন্তু মানে তুই যে প্রবলেমটা রেজ করেছিস, এক্সপোর্টটাকে কম করা আর ইম্পোর্টটাকে বাড়ানো, সরি উল্টোটা বলছি, এক্সপোর্ট বাড়ানো ইম্পোর্ট কম করা, এটাকে কিভাবে করবো? ইন্ডিয়া তো এখন এগ্রিকালচারাল সেল করতে পারবে না, তো আপনি যেটা বললেন যেটা টেকনোলজি, আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং, আর স্পেশালি যে আমাদের মেডিকেল মানে ফার্মাসিউটিক্যাল আর হসপিটালিটি, ফার্মাসিউটিক্যালস, এবারে তাহলে তার মানে হচ্ছে ওইটাই, তার মানেটা ওটাই, আমরা নিজেদের প্রোডাক্টের উপর ভরসা আমাদেরকে বাড়াতে হবে। মানে ওইটাই ইন্ডিজিনিয়াস, যেটা তুই বললি কথাটা, কি আমি বলছি না কি গ্লোবাল ম্যাটারের সাথে কানেক্ট না হতে, ও অটোমেটিক্যালি হয়ে যাব আমরা, কিন্তু আমি বলতে চাইছি ইন্ডিয়ানদেরকে নিজেদের প্রোডাক্ট, যেটা চাইনিজরা করেছে, চাইনিজরা চাইনিজ প্রোডাক্টের উপর ভরসা করেছে বলে আজকে চায়না নিজের মার্কেট বানাতে পেরেছে। মানে একটা কথা বলে না, কিন্তু যদি নিজের জিনিসকে নিজে দাম না দিস তাহলে লোকও তোর জিনিসের দাম দেবে না, সিম্পল। যদি একটা মানুষ নিজে এটাই। নিজেকে একটা মানুষ যদি নিজে নিজের ভ্যালু না করে, তাহলে তোর ভ্যালু কে করবে? ইন সিম্পল, মানে এর জন্য বিশাল কোনো ইকোনমিক্স এর 5টা বই পড়ার দরকার নেই, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। तुम अपना दाम दो खुद को, दुनिया तुमको तुम्हारा दाम देगा। तुम खुद को वैल्यूलेस सोचोगे तो दुनिया तुमको भी वैल्यूलेस मानेगा। दैट इज वेरी सिंपल फंडा इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तुम मानो कि तुम जो करते हो अच्छा कर रहे हो, और अगर कुछ कमी है, हाँ ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, अगर कुछ कमियां हैं तो उसको रेक्टिफाई करो, कमियां ढूंढ मिल जाएगा सर। तुम एकदम ओपन फीडबैक मांगो कि कहाँ कमी है, बोलो, ओपन फीडबैक मांगो लोगों से, क्या प्रॉब्लम? अच्छा देखो सर, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा आर्बिट्रेज का एक आइडिया आप लोगों को लग गया। तो आर्बिट्रेजेस एंड आर्बिट्रेज ट्रेडर्स आर कॉल्ड यूजुअली वर्क ऑन बिहाफ ऑफ लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इट यूजुअली इन्वॉल्व्स ट्रेडिंग अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी, थोड़ा पैसा लगता है, एंड द स्प्लिट सेकंड अपॉर्चुनिटीज ऑफर्ड द offers can be identified and acted upon only with highly sophisticated softwares. Yes sir, highly sophisticated software, because इतना फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में डिफरेंसेस होता है, सॉफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर के बिना पॉसिबल नहीं है। आप लोग रिसर्च करके ढूंढ सकते हो कि अभी आर्बिट्रेज का कौन सा सॉफ्टवेयर बेहतर चल रहा है। The standard definitions of arbitrage involves buying and selling shares of stock, commodities or currencies on multiple markets to profit from inevitable differences in their price from minute to minute.
ठीक है, अब चलो हम लोग थोड़ा सा ऑप्शंस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। व्हाई आर्बिट्रेज इज इंपॉर्टेंट, आर्बिट्रेज इंपॉर्टेंट क्यों है, ये एक थोड़ा सा जवाब ले लेते हैं। चलो क्या बताते हैं। In the course of making a profit, arbitrage trader enhance the efficiency on the financial market as they buy and sell, है ना, मार्केट में ऑलवेज बाई सेल लगा रहता है, and price differences between identical or similar assets. The lower price assets are bid up while the higher price assets are sold off, है ना, जो जिसका दाम कम रहेगा उसका बिड बढ़ता रहेगा और जो दाम ज्यादा रहेगा वो सेल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जो मार्केट का इनएफिशिएंसी है वो धीरे धीरे हट जाएगा। तो आर्बिट्रेज रिजॉल्व्स इनएफिशिएंसीज इन द मार्केट। क्या ये प्रॉब्लम समझ में आया। और मार्केट में लिक्विडिटी देता है, मार्केट में लिक्विडिटी देता है क्योंकि जिसका दाम कम रहेगा उसमें ज्यादा लोग बीट करेगा तो ऑटोमेटिकली उसका दाम बढ़ जाएगा। माने अगर कोई शेयर का दाम 100 रुपीज चल रहा था, ठीक है, तो 100 रुपीज का शेयर अगर दूसरे मार्केट में 100.50 में बिक रहा है तो जिसका दाम सस्ता है अगर ज्यादा लोग उसको बाई करेगा तो ऑटोमेटिकली इसका भी दाम बढ़ जाएगा। और जिसका दाम ज्यादा है इसको लोग सेल करेगा। तो इफ यू बाई हियर तो ऑटोमेटिकली इसका डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस चेंज हो जाएगा। इसका दाम ज्यादा है तुम इसको सेल ऑफ करोगे, है ना, तुम इसको सेल करोगे तो इसका दाम कम होता जाएगा। तो ये जो बीच का गैप है ना, ये गैप भी रिजॉल्व हो जाएगा। तो आर्बिट्रेज कहीं ना कहीं मार्केट में बाई सेल का जो लिक्विडिटी है उसको बरकरार रखता है। और सेकेंड ऑफ कि ये मार्केट में जो इनएफिशिएंसीज है दो तरह का, ये मार्केट का इनएफिशिएंस को भी रिकवर करता है। तो वाई आर्बिट्रेज इज इंपॉर्टेंट, इफ यू अंडरस्टैंड, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। কি তাই তো বোঝা গেছে তো নাকি রে। तो आर्बिट्रेज वर्क्स इन इन्वेस्टिंग इस तरह से काम करता है। चाहे आप इसमें कोई भी एसेट यूज करो ना सर, स्टॉक मार्केट में चले जाओ, आप करेंसी मार्केट में चले जाओ। हाँ, अब करेंसी मार्केट एक अलग ही लेवल का डिस्कशन होता है सर, मैं अभी उस लेवल का डिस्कशन, क्योंकि ये करेंसी का क्लास तो है नहीं, मैंने जस्ट एक आइडिया दिया आर्बिट्रेज में कैसे करेंसी काम करता है। बट बाकी आप लोग जब एनआईएसएम में करेंसी भी क्रैक करोगे तो उस टाइम पे करेंसी रिलेटेड भी पूरा डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। ठीक है, करना तो पड़ेगा सर। अच्छा, तो नाउ पॉइंट इज दैट हम लोग ऑप्शंस आर्बिट्रेज में बात करेंगे। ठीक है, अब देखो बहुत इजी लगेगा। तो arbitrage opportunities exist in almost every market. One needs to be keen observer of the market to spot it and profit from it, है ना। Typically stock market based arbitrage opportunities allow you to lock in a certain profit. एक certain profit छोटा देगा but guaranteed देगा, है ना, छोटा देगा but guaranteed देगा, and carry this profit irrespective of which direction the market moves. इस प्रॉफिट को मार्केट मूवमेंट ना भी रहे तो भी मिलता है, क्योंकि जो बीएससी एनएससी का डिफरेंसेस, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज का डिफरेंसेस, ठीक है, ये चलता रहता है सर। इसके लिए हाई लेवल सॉफ्टवेयर यूज होता है, वहां पर आपको ये सब इजीली करने को मौका मिलता है। फॉर दिस रीजन आर्बिट्रेज ट्रेड्स आर क्वाइट अ फेवरेट विद रिस्क इंटॉलरेंट ट्रेडर्स, जिनको रिस्क लेना पसंद नहीं है, और सबसे बड़ा चीज जिनके पास कैपिटल भी बड़ा है। ठीक है, ओके, अब इस मुद्दे पे चलो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें ना एक्चुअली एक पुट कॉल पैरिटी का एक कॉन्सेप्ट आता है, ये आर्बिट्रेज इक्वेशंस को बनाता है सर। पुट कॉल पैरिटी, ठीक है, अब पुट कॉल पैरिटी क्या है इसमें बाद में बात कर लेंगे सर, या फिर यहाँ पर एक वीडियो का लिंक भी दिया है, आप चाहो तो इसको भी देख सकते हो, मैं बाद में बात कर लूंगा अगर, क्योंकि वहां पर एकदम सर इंग्लिश स्टाइल में बोला है, समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो बाद में देख लेना, बट मैं बाद में बात करता हूँ। पुट कॉल पैरिटी और आर्बिट्रेज इक्वेशन कैसे काम करेगा, देखो, लॉन्ग सिंथेटिक लॉन्ग एंड शॉर्ट फ्यूचर्स। तो उसमें वी ऑल नो कि हम लोग क्या किए थे सर, लॉन्ग एटीएम कॉल माने बाय एंड शॉर्ट एटीएम पुट माने एटीएम को पुट को सेल करना, ठीक है, एटीएम पुट को सेल करना है और एटीएम कॉल को बाय करना है और एक शॉर्ट फ्यूचर करना है, जिसका इक्वेशन आपके सामने जनरेट किया गया है 0, शॉर्ट लॉन्ग एटीएम कॉल, शॉर्ट एटीएम पुट एंड प्लस शॉर्ट फ्यूचर्स इक्वल्स टू 0। अब आगे देखो क्लियर हो जाएगा आपको। दिस इक्वेशन स्टेट्स दैट द पीएल माने प्रॉफिट एंड लॉस अपॉन एक्सपायरी by virtue of holding a long synthetic call and short future should be 0. Why should these positions result into 0 and 0 PL? Well, the answer is attribute to the put call parity. Actually, इसका जवाब आपको put call parity में मिलेगा। मैं इसके बारे में बात करता हूँ सर, put call parity में
मैंने पुट कॉल पैरिटी अल्टीमेटली आपको एक जीरो लेवल पीएल में पहुंचाता है। However, if the PL is a non-zero value, then we have an arbitrage opportunity. Normally put call parity आपको जीरो में पहुंचाता है, बट अगर PL जीरो वैल्यू नहीं होता है, नॉन जीरो वैल्यू होता है, देन आपको आर्बिट्रेज मिलता है। एग्जाम्पल देखो, मिलेगा, समझ में आ जाएगा सर। पेशेंसफुल रहने से हर चीज का जवाब मिल ही जाता है। अच्छा, निफ्टी 50 को देखो, ये पुराना डेटा है 2016 का, आप इसको आज के डेट से भी चेक कर सकते हो। आपके सामने डेटा तो बहुत सारा है, ये ऑर्डर बुक है सर, बट हमें यहाँ पर से चाहिए निफ्टी का स्पॉट प्राइस। निफ्टी स्पॉट कितना है सर? ये फ्यूचर है सर, फ्यूचर या ऑप्शंस का वैल्यू है, इंडेक्स फ्यूचर है, ठीक है, ये फ्यूचर वैल्यू है। एक्सपायरी डेट 28 जनवरी का लिया गया था, तो 7316 तो फ्यूचर प्राइस है, बट स्पॉट प्राइस जो है वो अंडरलाइंग वैल्यू होता है 7304, ठीक है। 7304 इज योर स्पॉट प्राइस। ये जिस डेट पे लिया गया था डेटा 21 जनवरी को। सर एक बात ध्यान से सुनो, हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे हैं हिस्टोरिकल डेटा से सीख रहे हैं। आपको बस इतना बताऊंगा, हिस्ट्री हमें क्या सिखाता है? हिस्ट्री हमें प्रेजेंट सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करना सिखाता है, और फ्यूचर सिचुएशंस के बारे में पहले से एक फोरकास्ट देता है? लोग बोलते हैं कि हिस्ट्री की क्यों इंपॉर्टेंट है ना? हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री आपका प्रेजेंट सेट करता है, और आपका प्रेजेंट आपका फ्यूचर सेट करता है। सो इफ यू इग्नोर हिस्ट्री, then you can't set your present. If you can't set your present, then you can't set your future. ये सब कनेक्टेड है, मानो तो बहुत कुछ, ना मानो तो बहुत मुश्किल। सर इतिहास हो गया, हम लोग बहुत बार बोलते हैं वो सब इतिहास होएगा। अरे कुछ इतिहास नहीं होता है, इतिहास तो जो होता है वो होता है, बट इतिहास आपको क्या सिखाता है वो तो देखो। नॉर्मली हम लोग हिस्ट्री में इंटरेस्टेड नहीं होते उतना ज्यादा, लेकिन इतिहास में इंटरेस्टेड होना चाहिए सर। कभी सोचना सर, तो समझ में आएगा। अच्छा देखो, तो 21 जनवरी को जो हिस्टोरिकल डेटा मिल रहा है, इसमें आपका मार्केट चल रहा था 7304 में, निफ्टी का फ्यूचर ट्रेडिंग हो रहा था 7316 में। यहाँ पर आपका प्रीमियम वैल्यू कॉल का और पुट का दोनों साइड का दे रहा है। 79.50 का प्रीमियम, इधर 73.85 का प्रीमियम, ठीक है। ये आपका ऑप्शन चेन दिख रहा है आपके सामने, और स्ट्राइक लिया गया है 7300 का, ठीक है। स्ट्राइक लिया गया है 7300 का। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड सर, तो 7300 कॉल ऑप्शंस, दिस इज योर स्ट्राइक एंड पुट ऑप्शंस। एटीएम है सर, ठीक है, एटीएम में। एटीएम क्यों? क्योंकि एकदम 7304 अगर हमारा स्पॉट है, तो अगर हम 7300 स्ट्राइक लेते तो एटीएम में होता है ना, ठीक था, तो एटीएम ही হবে तो 7300। सर तो द 7300 कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस दोनों ही एटीएम लिया गया है। ट्रेडिंग कर रहा है, प्रीमियम वैल्यू दिया है 79.5 कर रहा था एंड 73.85 रेस्पेक्टिवली। डू नोट ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स बिलोंग टू द जनवरी 2016 सीरीज, ठीक है, मैंने एक्सपायर इसी मंथ में करेगा। गोइंग बाय द आर्बिट्रेज इक्वेशन स्टेटेड अबव, इफ वन वे टू एग्जीक्यूट द ट्रेड, अगर किसी को ये ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, पोजीशन क्या बनेगा? 7300 स्ट्राइक में लॉन्ग चलो, 7300 स्ट्राइक में लॉन्ग चलो, लॉन्ग माने बाई करो, प्रीमियम भरना है। जब बाई करोगे प्रीमियम भरोगे, 79.5 अगर प्रीमियम है और लॉट साइज 50 है तो इतना अमाउंट आपका लग जाता है। बाकी अगर आप एक साथ मल्टी लेग स्ट्रेटेजी लेते हो ना, तो क्या होता है ना, आपका प्रीमियम माने जो प्रीमियम लेना, प्रीमियम रिसीव करना, सब मिला के आपका मार्जिन वैल्यू में एक एडजस्टमेंट कर देता है। कौन? एक्सचेंज, ठीक है। तो ये तो आपको सॉफ्टवेयर ही दे दिखा देता है कि आपको कितना मार्जिन जमा करना है ना। अच्छा, शॉर्ट करोगे माने सेल करोगे पुट ऑप्शंस को, तो यहाँ पर कलेक्ट कर लोगे 73.85। शॉर्ट करना है निफ्टी फ्यूचर को, ध्यान से सुनना बात को, ये दोनों ऑप्शन है, पर यहाँ पर एक फ्यूचर भी साथ में आ गया। निफ्टी फ्यूचर को शॉर्ट करना है माने सेल करना, सेलर बनो सर, बाद में बाई कर लेना, ये होता है। मतलब शॉर्टिंग माने सेल फर्स्ट बाई लेटर, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्टिंग। ऐसे
बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में एज वेल एज टेक्निकल पे, इवन फ्यूचर बेसिक्स में भी ये चीज में चर्चा होता है। तो बेसिक्स में मैं वापस शॉर्टिंग टेक्निक समझाऊंगा, बट इतना जान लो कि जब मार्केट के प्रति आप एक नेगेटिव सेंटिमेंट रखते हो तो आप शॉर्टिंग करोगे तो अच्छा रहता है। डू नोट द फर्स्ट टू ऑप्शंस, ठीक है, लॉन्ग शॉर्ट फ्रॉम ए लॉन्ग सिंथेटिक लॉन्ग, ठीक है। नाउ एज पर द आर्बिट्रेज इक्वेशंस अपॉन एक्सपायरी द पोजीशन शुड रिजल्ट इन ए जीरो पीएल। चलो कैसे होगा देखते हैं, है ना, जीरो पीएल कैसे होगा। अच्छा 7300 आपका स्ट्राइक है, ये आपका स्ट्राइक है, ठीक है, एटीएम। अगर मार्केट 1 वीक लेटर, ठीक है, चलो मैं देखता हूँ ये जो डेटा लिया गया था ये कब लिया गया था। ये डेटा आपके सामने है, ये डेटा है 21 जनवरी का, मार्केट एक्सपायर करेगा 28 जन को, माने पक्का 1 वीक का सिनारियो है ना सर, पक्का 1 वीक का सिनारियो है। अब एक चीज देखो यहाँ पे, 21 जनवरी इधर 28 जनवरी, तो 21 और इधर 28, 7 दिन का एक्सपायरी आपका बाकी है। अब ऐसे सिनारियो में मार्केट स्पॉट में 7304 में चल रहा है और आपका फ्यूचर 7316 दिखा रहा है, और अंडरलाइंग माने स्पॉट मार्केट 7340 में है। अब मार्केट कहां हिट करने से क्या होगा, माने स्पॉट मार्केट, ठीक है सर, 7304 से अगर मार्केट डाउन चला जाता है, 7304 से अगर मार्केट 7200 में एक्सपायर करता है तो आपका क्या होगा देख लो सर। अगेन आपको पता है कि कॉल के केस में क्या होता है, पुट के केस में क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशंस, हेलो याद आ रहा है ना। तो 7300 कॉल ऑप्शन शुड एक्सपायर और सेलेस सिंस वी विल लॉस द प्रीमियम पेड, हेलो। स्पॉट माइनस क्या करना है, 7200 माइनस 7300, नेगेटिव 100 है ना, नेगेटिव तो नहीं हो सकता तो जीरो होगा, और आपको पता है प्रीमियम पेड माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू, तो 79.5 आपका गया, लॉस है ना सर। मार्केट 7200 में चला जाएगा, आपके पास एटीएम स्ट्राइक है तो आपका लॉस होगा, ये सर नो। हाँ सर। हाँ सर। 7300 पुट ऑप्शंस, इस बार आपका हिसाब क्या होगा, 7300 स्ट्राइक माइनस स्पॉट है ना इस बार। हाँ पुट के केस में क्या होता है, स्ट्राइक माइनस स्पॉट, तो 7300 माइनस 200, तो इट्स 100 इंट्रिंसिक वैल्यू। बट आपने शॉर्ट किया था 73.85 में, मैंने आपका प्रीमियम पे ऑफ था, तो 73.85 आपका प्रीमियम रिसीव्ड है और 100 आपका इंट्रिंसिक वैल्यू है, तो प्रीमियम रिसीव्ड माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू, अगेन 26.15 का लॉस। लेकिन इसमें और एक स्ट्रेटेजी है सर, 7316 में आपने फ्यूचर में शॉर्ट किया सर, सर कनेक्टेड है सब कोई, थोड़ा नेटवर्क इश्यूज है, प्लीज सर। मुझे एक बार बताओ। हाँ सर। स्क्रीन भी शेयर है, हाँ सर। स्क्रीन शेयर है। 7316 में आपने फ्यूचर शॉर्ट कर दिया, तो वी आर शॉर्ट ऑन फ्यूचर एट 7316, तो 7316 करने से क्या होता है, 7316 से अगर आप सेल करते हो और जब मार्केट 7200 में आता है तब आप बाई कर लेते हो, आपने प्रॉफिट कितना कर लिया सर, पॉइंट टू बी नोटेड। जिनको शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उनके लिए बस इतना बताऊंगा कि मार्केट ना, स्पेशली अगर मैं सिंपल इंट्राडे में बोलता हूं आपको, चलो इंट्राडे में भी शॉर्ट सेलिंग अवेलेबल होता है और फ्यूचर मार्केट में तो है ही, और ऑप्शंस में तो आप उसको स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो। नाउ इंट्राडे में अगर मानो आपने 7316 में कोई शेयर को सेल कर दिया और 7200 में जब मार्केट मानो 9:15 में आपने ऐसा किया और 3:30 बजे आपने
हेलो सर, नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा है, आप लोग क्या डिस्कनेक्टेड हो जा रहे हो क्या? वेदर खराब है आज। হ্যাঁ স্যার হালকা কেটে যাচ্ছে আওয়াজটা। হ্যাঁ, একদম আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে এখন? হ্যালো, এখন হ্যাঁ, স্যার। আসছে। ওকে, একটু আগে কাটছিল। মাঝে মাঝে আসলে ওয়েদারটা খুব খারাপ না, প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে। तो 7316 में तुमने अगर 915 में सेल कर दिया और मानो 315 को तुमने उसको बाई कर लिया, अगर तुम नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक भी हो जाता है इंट्राडे में। सो पॉइंट इज दैट बेसिकली मार्केट इसको यही मानेगा कि तुमने 7200 में बाई किया था और 7316 में सेल कर दिया था। सिंपल। लेकिन वो अलग बात कि तुमने इसको जब किया था तो तुमने शॉर्ट किया था, तुमने सेल पहले कर दिया था, मार्केट इसको ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई कर लेगा। बाकी काम एक्सचेंज का है, तुम ज्यादा दिमाग ना लगाओ, तुम अपना एनालिसिस लगाओ, तुम्हारा काम है एनालिसिस करना, मार्केट क्या कर रहा है वो बाद में समझ जाओ। तो इसमें आपको 116 पॉइंट का प्रॉफिट, तो कुल मिला के नेट पे ऑफ का क्या हालत हो रहा है देखो, 79.5 का लॉस, 26.15 का लॉस एंड 116 का प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट कर दिया सर? पॉजिटिव 10.35। तो जहां पर आपको जीरो पे ऑफ होना चाहिए था, तुमने यहाँ पर नॉन जीरो पे ऑफ देखा। इंस्टेड ऑफ ए जीरो पे ऑफ वी आर एक्सपीरियंसिंग पॉजिटिव नॉन जीरो पीएल। 10 टका 35 पैसा का हल्का सा गैप है, बहुत ज्यादा नहीं, 10 रुपीज का गैप। सेम चीज अगर एक्सपायर होता है मार्केट 7300 में, मार्केट अगर 7300 में एक्सपायर होता है, आपका स्ट्राइक भी 7300 था, मैंने एटीएम में था, एटीएम में ही कंप्लीट हो गया। इसमें भी हिसाब लगाओगे ना, 79.5 का लॉस, 73.85 का गेन, रिटर्न रिटर्न करोगे और 116 पॉइंट का प्रॉफिट, ओनली 16 अगेन 10.35। एक हफ्ता में मार्केट अब कितना चेंज हो जाएगा, है ना, आसपास में ही घूमेगा। अगर मार्केट 7400 में भी एक्सपायर करता है, मूव करता है, लुक एट सर, हाँ, अगर मार्केट 7400 में भी एक्सपायर करता है, आप भूलना सर, 7304 आपका करंट मार्केट था, अगर मार्केट 7400 में भी जाता है तो भी आप चेक करके देखो, इधर आपका 20.5, इधर 73.5, इधर 84, ये लॉस है आपका। तो 10.35 अगेन, आई थिंक यू कुड टेस्ट दिस अक्रॉस एनी एक्सपायरी वैल्यू। आप इसको किसी भी एक्सपायरी वैल्यू पे चेक कर सकते हो, ये रैंडमली लिया गया है, 7200, 300, 400, आप कोई भी वैल्यू पे चेक करके देखो। मार्केट्स कैन मूव इन एनी डायरेक्शन बट यू आर लाइकली टू पॉकेट 10.35 पॉइंट्स। मार्केट कहीं भी जाए बट आप 10 टका 35 पैसा पॉकेट करोगे एक्सपायरी पे। इंटरेस्टिंग है ना, मैजिक की तरह काम कर रहा है, करके देखना सर। You could taste this। করা যায়। हाँ बोल, মানে हाँ बोल। ক্যালেন্ডার স্প্রেডটাও তো সেম মানে এরকম ভাবেই তো চলে। যখন हाँ এরকম অনেক, হ্যাঁ হ্যাঁ বল। বেশি থাকে তখন স্পটে সেটা মানে হায়ার প্রাইসে সেল করে দিয়ে তখন লোয়েস্ট প্রাইসে বাই করলে, মানে যদি স্পট কম থাকে তাহলে স্পটটা বাই করে নিলাম, আর ফিউচার যদি হাই থাকে তাহলে ফিউচার সেল করে দিলাম। তো মানে সেম দুটো ডিফারেন্স তো। হ্যাঁ যেমন হ্যাঁ হ্যাঁ, একই ভাবে স্ট্র্যাটেজি গুলোকে নেওয়া যায়, বাট এখানে কনসেপ্টটাকে আরবিট্রেজ বলা হচ্ছে, ঠিক আছে। এবারে তুই যদি এখানে জিনিসটাকে দেখিস, দ্য পে অফ স্ট্রাকচার एट डिफरेंट एक्सपायरी वैल्यू, पे ऑफ स्ट्रक्चर है डिफरेंट एक्सपायरी वैल्यू। अब तुम यहाँ पर कोई भी एक्सपायरी वैल्यू पे चेक करो, तुम देखना हर बार तुमको 10.35 मिल रहा है, यानी 7304 तुम्हारा स्ट्राइक था, अब तुम 7300 एटीएम से अगर मार्केट नीचे भी जाता है, अगर मार्केट ऊपर भी आता है, तुम देखो तुमको एक नेट पे ऑफ मिल रहा है 10.35। दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। जब जिधर जिधर देखो 10.35, जिधर देखो 10.35। बट इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ट्रांजैक्शन चार्जेस। One has to account for the cost of execution of this trade and figure out if it still makes sense to take up the trade। ये आपको फाइंड आउट करना है। ब्रोकरेज, इफ यू आर ट्रेडिंग विद द ट्रेडिशनल ब्रोकर मे बी आपको थोड़ा ज्यादा ब्रोकरेज देना पड़े, बट आजकल सर डिस्काउंट ब्रोकरेज वगैरह आ गए हैं, जीरोधा, आप स्टॉक्स, ग्रो, ठीक है, तो इसमें आपको ब्रोकरेज थोड़ा कम लगेगा, तो इन दैट केस में भी आप थोड़ा पैसा पॉकेट घर लेके जा पाओगे। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, तो रिमेंबर द पीएल इज रियलाइज्ड अपॉन एक्सपायरी, hence you would have to carry forward your positions to expiry. If you are long as on ITM options, which will
देन अपन एक्सपायरी विल हैव टू पे hefty STT, है ना, आपको STT पे करना है, which will further eat away your profits, ठीक है। तो अगर आप इसको लास्ट तक लेके जाते हो और ITM में जाके क्लोज करते हो तो इन दैट केस आपका सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एक लगता है। तो उसमें आप देख लेना कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस देना है कि उससे पहले ही आप उसको निकालना चाहते हो। अदर एप्लीकेबल टैक्सेस अगर कुछ भी है, सर्विस टैक्स वगैरह, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह, वो भी चेक करना है, टाइम टू टाइम आता रहता है, ठीक है। सो कंसिडरिंग दिस कॉस्ट, द effort to carry on arbitrage trade for 10 points may not make sense, but it certainly would if the payoff something better, maybe like 15 or 20। मैंने only 10 points difference में नॉर्मली नहीं करना चाहिए, बिकॉज टैक्स और चार्जेस मिलके आपको कुछ बचेगा नहीं, मतलब आपका समय बेकार है ना। जैसे वो आपका पीयूष आज एग्रीकल्चरल का एग्जांपल दे रहा था ना सर, कि 3 महीना मेहनत करके अगर 4,000 टका कमाना है तो फिर क्यों जूट में पैसा लगाएगा एक फार्मर्स की, ताई तो पीयूष नहीं। हाँ सर। इट्स लाइक दैट, इट्स लाइक दैट। तो अगर आपको थोड़ा ज्यादा मौका मिले आर्बिट्रेज में, ठीक है, तो फिर आप 15-20 पॉइंट का मूवमेंट में फिर जाके आप कर सकते हो, क्योंकि उसमें आप STT या जो भी चार्जेस है उसको आप बचा सकते हो, ठीक है। मैंने बचा सकते हो, मैंने थोड़ा गैप क्रिएट होगा। तो बेसिकली ये जो पर्टिकुलर टॉपिक था सिंथेटिक लॉन्ग एंड आर्बिट्रेज वाला, ये पर्टिकुलर टॉपिक या स्ट्रेटेजी आपको बहुत लार्ज प्रॉफिट क्रिएट नहीं करके देगा, बहुत ही शॉर्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट क्रिएट करके देगा। बट अगर आप अपने चार्जेस को मैनेज कर सकते हो तो स्ट्रेटेजी अच्छा है, क्योंकि काफी श्योर शॉर्ट प्रॉफिट आपके सामने रखता है। आपको जो प्रॉफिट जनरेट करके देता है 10 टका 35 पैसा हमारे एग्जांपल्स में था, आप अगर 12 टका 15 टका, अगर आप चार्जेस को कॉस्टिंग को देख लेते हो ना सर, अगर कॉस्ट के साथ मेंटेन करके आप देख रहे हो तो फिर आप इसमें जा सकते हो। ये अच्छा स्ट्रेटेजी है उस एंगल से देखा जाए। लेकिन वही कॉस्टिंग चार्जेस क्या है आपका, कितना पड़ेगा, वो पहले आप ब्रोकरेज कंपनी से डिसाइड कर लो या कैलकुलेटर में जाके चेक कर लो, फिर जाके आप ऐसे स्ट्रेटेजी डेवलप कर सकते हो, क्योंकि आपका प्रॉफिट श्योर शॉट है ऑलमोस्ट, है ना सर। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आर्बिट्रेज भी समझ में आया और सिंथेटिक लॉन्ग वाला ये जो कॉन्सेप्ट था ये भी समझ में आया कि বোঝা গেছে কি যায়নি। হ্যাঁ স্যার, বলছি এইটার জন্য তো তাহলে মানে আমার ভলিউম হাই হতে হবে, মানে হ্যাঁ কোয়ান্টিটি অবভিয়াসলি হাই। অবভিয়াসলি, হ্যাঁ হ্যাঁ কোয়ান্টিটি হাই হতে হবে, তবে কিছু দেখতে পাবি, স্মল কোয়ান্টিটিতে না। নর্মালি যারা এই ধরনের মার্কেটে ঢোকে তারা মোর দ্যান লাখে টাকা লাগায়, কিন্তু যেহেতু শিওর শর্ট রিস্কটা অনেকটা কম হয়, অনেকটা মানে অলমোস্ট না के बराबर। সেই জন্য এটা ইন্টারেস্টিং। বল বল বলে না তার বলি। আচ্ছা নে বিশ্ব বল। বলছি কি যে এটাই তো মার্জিনটা খুব বেশি হওয়া সম্ভব না, কারণ এটা তো একটা এরর। এবার এখানে অল্প টাকা লাগিয়ে গেইন করা মানে এটা হয় না, কোনোদিন সম্ভব না। আরে সম্ভব না এই কথা বলা ভুল, গেইন করে দেখিস, অ্যাটলিস্ট পেপার ট্রেডিং এ করে দেখে। কি করে আমার তো অল্প কিছু এরর হবে না, এত বড় এই মার্কেটে খুব বড় এরর তো হবে না না কোনোদিন। তাহলে আস্তে 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 এররটা কমছে, কিন্তু তবুও এরর আছে, এখনো আরবিট্রেজ কোম্পানিজ গুলো চলছে। এরর আছে, এবার ধরো আমি 0.5% পাচ্ছি, তাহলে আমি অল্প টাকা লাগিয়ে সেই না গেইনটা। তাহলে হ্যাঁ ওই এক্স্যাক্টলি সেই জন্যই কথাটা বলা হলো, সেই জন্যই বলা হলো কি যদি ধর কিছু না থাকে তাহলে কি তাহলে তো কখনোই কনসিডার করা উচিত না। মানে যদি কিছু থাকে চার্জেস গুলো মাইনাস করে তাহলে যাবো, নাহলে যাবো না। ঠিকই বলছিস তুই কথাটা, ওটাই ক্যালকুলেটটা আগে করে নিতে হবে, মানে ফোরকাস্টটা আগেই করে নিতে হবে কি আমার কিছু বাড়ছে কিনা। যেহেতু আমি প্রফিটটা মার্কেট পড়লেও পাচ্ছি, মার্কেট বাড়লেও পাচ্ছি, কিন্তু প্রফিটটা কম পাচ্ছি। এবারে ওই ডিফারেন্সটা থাকে তো, যদি 2 টাকা 4 টাকা থাকছে আর তোর চার্জেসই আছে 2 টাকা 4 টাকা, তাহলে কেন যাবি, শুধু শুধু মাথা কেন খরচা করবি। ঠিকই বলছিস স্যার ব্রোকার কোম্পানিগুলো তো করতে পারবে, নিজেরা যারা ট্রেড করে। হ্যাঁ ওরাই বেশি করে, তো বড় কোম্পানি গুলোই বেশি করে, তারাই তো করবে নিজেরা। বড় কোম্পানিরাই বেশি করে। আর মিউচুয়াল ফান্ড গুলো এএমসি গুলো প্রচুর করে, যখন মিউচুয়াল ফান্ডে কাজ টাজ করবি না বুঝতে পারবি, এরা প্রচুর করে এই ট্রেডটা। এই স্ট্র্যাটেজিটার একটা আলাদা ইউজ আছে। কয়েকটা তো আরবিট্রেজ বেস মিউচুয়াল ফান্ডও আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ ওই জন্যই বলছি আরবিট্রেজ মানে ওরা
একটা শিওর শট দেখতে পায় ইজিলি, বড় ফান্ড আছে, লাগাচ্ছে তুলছে, লাগাচ্ছে তুলছে, লাগাচ্ছে তুলছে, ভালো ভালো কামাতে পারে, ওদের কাছে ফান্ড অ্যাভেলেবেল আছে। তো এই স্ট্র্যাটেজিটা এই জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, আজকে এতটাই রাখি, বাকি ডিসকাশন কালকে করবো। ঠিক আছে স্যার, ছিল খান পাঁচেক মতো প্রশ্ন ছিল। কোথা থেকে? আরবিট্রেজ থেকে? হ্যাঁ, আমার আরবিট্রেজ মানে পড়া ছিল, আমি পড়ে গেছিলাম ওখানে পুট কল প্যারিটি, তারপরে আরো সব ছিল মানে আরবিট্রেজে কেমন রিস্ক কেমন ফ্যাক্টর আছে সেসব মানে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রশ্ন করেছিল। আমার মনে হচ্ছে ওখান থেকে খান তিনেক ঠিক হয়েছে, কিছু কিছু বুঝতে পারিনি ছেড়ে দিয়েছিলাম। ঠিক আছে, আস্তে আস্তে আরো বেটার হয়ে যাবে। এখন আর নিজেকে আপডেট রাখবি, এই মার্কেটে অলওয়েজ নিজেকে আপডেট রাখতে হবে। যত পড়াশোনার সাথে থাকবি, রেগুলারিটি মেনটেন করবি, ঠিক আছে, মানে পড়াশোনাটা চালিয়ে যাবি, কখনো বন্ধ করবি না। মানে যদি কালকে যখন মার্কেটে আস্তে আস্তে অ্যাজ এ ফ্রেশার ধর জয়েন করলি, তারপর আস্তে আস্তে নিজের ফার্ম খুললি, ফ্র্যাঞ্চাইজি নিলি, যা কর, যদি মার্কেটে থাকিস নিজে ট্রেড নে, অ্যাজ এ ক্লায়েন্ট হ্যান্ডেল কর, কিন্তু মার্কেটে অলওয়েজ আপডেট থাকবি, দেখবি মার্কেট সবসময় তোকে তোর সঙ্গে থাকবে। ঠিক আছে, আজকে এতটাই রাখি, নেক্সট ডিসকাশন পরের ক্লাসে করছি। হ্যাঁ, ওকে স্যার। ওকে, রাখছি স্যার। আচ্ছা, বাই। স্যার কাল কি ক্লাস